School of Petroleum Technology, which is a BTech engineering course specially designed from petroleum point of view. Then the normal engineering branches, and the School of Liberal Study, which has BCom, BBA, BA, and MA courses. And together, these are the courses that the university is running for across 6,000 students, and has got a 100-acre campus. And Faizab, if you can please change this slide. So yeah, that's about PDPU, and with that, PDPU has got huge resource in terms of the laboratories, the human resource. I mean, the faculties, the experts that are there at PDPU are domain experts in their own areas, and together, we kind of support our startups as well in this area, this way only with the with the knowledge and expertise of the university, faculties and members, and then with the infrastructural facilities as well, and then with the incubation procedure, help the startups to grow. So that's about PDPU, and I would like to take you through the PDPU Innovation and Incubation Center, which is designed this curriculum for the Indian SMEs. So we are an incubator, which is government approved, government established incubation center, which is approved by both central government and the state government of Gujarat. And we are a nodal institute, a not-for-profit organization. And we support startups and we help them commercialize their business ideas. And in the journey, we help them with all the stages, steps, procedures, and we try and give customized services to startups based on the problems that they are facing, based on the domain that they are in, and based on the kind of support and help that they are looking for us. And so we basically are the facilitators to startup, and we design customized services for our startups, our clients. And we've been working and functioning for almost 6 years now. And over the past 6 years, we have filed more than 50 plus IPR, I mean, patent, trademark, and copyright. And we have almost 100 plus startups incubated at different stages of their cycle. I mean, starting from idea to coming up with a fully grown startup company who is just waiting to kind of grow itself in the market with the products that they have made, to ideas who have just validated themselves. And we support these startups through set of facilities or the experts that we have. So in house, the incubation center has also got set of mentors who are mentoring the startups on a continuous and daily basis to kind of ease their process of commercializing their business idea. And over the past 6 years, this is our journey. We started in the year 2014 with a student startup cell, and then with the support of the university, we've grown ourselves into a full functioning incubation center, which is being nominated as the best center in the region of Gujarat by government of Gujarat. And we are also recognized as the incubation center for our IP activities for past 3 years. And we support student startup fully grown business ideas, and businessmen or people who want to expand their business idea and grow it in the market. And these are some of our achievements. Like I said, we've been awarded as the IP center for the good IP culture that we have for the past 3 years. And also, we've been recognized as the best startup center by the state government. With that, we kind of organize couple of events, like SME Accelerator is one of the event where we target different sector people, different domain people. Like we organize manager training program as well, which is for the incubation centers manager across India. We organize training programs for them. We do organize a lot of programs for students at different stage and different levels, where we kind of help them ideate and help them prove the concept that they have ideated, so that they can also come up with a fully developed product and a prototype. We have different set of sessions for startups, and then we have such specialized courses which are designed
for a specific set of target audience from growth per se, because in this time when everything is pretty much uncertain, we have to be continuously evolving so that we can stay in the market, and we can we need to evolve with the market. And yeah so, so that's more or less about our incubation center. Over the next 14 sessions, we will keep giving you insights about the way in which we function, the way in which we support, but because you'll be interacting with a lot of our experts as well, so you will kind of understand. And feel free to contact us in case you've got any specific doubts or queries. And now I'd like to hand it over to Faizyab. She'll guide you through the SME Accelerator program and why, with what thought process did we design it, and what is it is going to offer you over the period of next 14 weeks. Over to you, Faizyab. Thank you, Drishti. Good evening, everyone. I'm Faizyab Sheikh, and I also work as Assistant Manager with PDPU ISC team. I'll give you a brief introduction on what this program is about. You might have gone through our brochures and all our emails. So more or less you know about it, but exactly what we are planning to do and why we are planning this, why we planned for this program. So I'll just give you a brief introduction on the same. So the idea came from the fact that over the last few years, we have been helping out our startups, helping them with their growth, creating traction, for helping them with the traction in the market. And all this year, through all these years, we ourselves have learned very much. We have had experiences in working with the startups, and what we thought that if the same learnings and the same experiences can be applied to a program where we can also help out a good chunk of entrepreneurs, which is the MSME sector, and for whom nobody is doing anything right now. So that is the place where this idea came from. So over the planning of this program, we just went through the common challenges that all the MSMEs in India are facing. Some of it are the access to working capital management, the lack of innovation, lack of knowledge gap, lack of digital knowledge gap, then access to the skilled workforce, etc. So from there, we designed this particular program, and we targeted 6 key elements, starting with the introspection part, where a couple of sessions have been organized wherein the participants will be, we will help the participants to understand their own businesses, to understand what challenges they are facing, what are the strengths, weaknesses. And over those 2 sessions, they can figure out what scope of innovation or what scope of upgradation or improvements they have in their own established businesses. Moving on from there, we will move towards the business model innovation. We'll discuss about the new upcoming innovation models that have started erupting in the markets, and how can whether this business models can be adapted by the MSMEs or not, and if yes, then in what ways they can do it. Technology transformation, we will talk about the new upcoming technologies like AI, IoT, the entire digital platform. Will be talking about how to leverage all these things in increasing the revenue for the business, helping in the business operations, optimizing it, and to acquire new customers. Human capital rework, we will be talking about how to create a team within your own organization who will help you enable this innovation into your organization. Alternate funding options, where we'll be talking about majorly managing the working capital and raising funds, how to do it, and what are the sources, what are the tools, what are the options that are already in the market. And lastly, we'll be talking about the social relevance quotient. Most MNCs are using this and leveraging this particular factor for giving back to the society, and in turn, this particular thing helps them benefit their own businesses. So these are the 14 sessions that we have planned. Today we will start with our first topic, why SMEs need to innovate. We will share this entire schedule after today's session along with the dates and the speakers. I will just
introduce you to the experts that we will have for this entire program for different sessions. So today we will be interacting with Mr. Anay Mashruwala, who is partner, head marketing and quality at Venus Engineering Works. He is also an incubator coach, has been working with us since many years, and have been helping all our startups with their uh, from their early stage to the growth stage. We have with us Mr. Vikrant Fortness. He is the managing director of Fortman Advisors Private Limited, and also the founder of Indian Academy of Venture Capital. He is also one of our mentors for our startups and an expert in private equity funding. The other experts that we have is Mr. Chandramouli Pathak, Mr. Srirang Tambe, Mr. Neeraj Sonalkar, Dr. Kaustubh Dhargalkar. All of these experts are well known nationally and internationally. Mr. Ashish Kanodia, Mr. Divesh Vadhva, Mr. Rajesh Shah, Mr. Deepak Prajapati, Mr. Ashish Goel. He will be particularly coming from National Stock Exchange and talking about the SME listings. Mr. Hemant Gupta and Mr. Jatin Kataria. Finally, we have some international experts, Mr. Tony Biletti and Mr. Eduardo Biletti, who will be talking about the cross-border markets and how to enter those, how to tap into those markets. For this program, we have 4 partners who have been supporting us since our planning phase till today. So MSME Commissionerate, Government of Gujarat, National Stock Exchange, TiE Ahmedabad and IPPO Ahmedabad are our major partners for this program. So that's all about this program and what we'll be doing in the next 14 session. I will now hand over the session to Mr. Anay Mashruwala to start with and kick off with today's first topic. Over to you, sir. हेलो, कैसे हो? क्या मैं आप सबके वीडियोस ऑन देख सकता हूँ फॉर सम टाइम? કાંતિલાલ ભાઈ કેમ છો? બસ ફાઇન સર, બોલો મજામાં? बस मजा। मैं हिंदी और गुजराती और इंग्लिश थोड़ा बहुत मैं ज़्यादा इंटरेस्ट रखूँगा बिकॉज धंधे के लिए अंग्रेज़ी यूजुअली ज़रूरी नहीं होती है और इंटेंशन ही है और कभी कभार अगर बीच में मैं घुस जाता हूँ अंग्रेजी में तो प्लीज़ मुझे वापस खींच लीजिएगा। ओके। फैज़िया मैडम ने और दृष्टि मैडम ने दोनों ने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें कही, बहुत सारी चीज़ें शेयर की। मैं ये खास करके आपके साथ सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग ये कर क्यों रहे हैं। मुझे आप में से कई लोग में से ये भी फ़ोन आया था कि यार हम लोग को एंट्री का इन्विटेशन तो आ गया है पर पेमेंट का कोई अभी तक क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट या पेमेंट का कोई एंट्री पॉइंट तो नहीं आया है। तो द इंटेंशन यहाँ पे पैसे बनाने का पहले से नहीं था और अभी भी नहीं। हम लोग ने पिछले 6 साल में स्टार्टअप्स के साथ काम करते करते कुछ चीज़ें सीखी है। सीखा ये है कि जब सीखा है तो 105 जितने स्टार्टअप्स के साथ इंटरेक्ट किया है, 56 जितनी पेटेंट्स फाइल की है, 200 प्लस नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं, 100 करोड़ रुपए प्लस रेज किए हैं स्टार्टअप्स ने, 40 से 50 करोड़ रुपए प्लस का टर्नओवर किया हुआ है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज अराउंड 56 पेटेंट्स अगर मैं बोला नहीं तो वापस बोल रहा हूँ क्योंकि इतना प्राउड हो उसके लिए। ये सब चीज़ें की हुई है हमने। सो हमने सीखा ये है कि ये लोग जो है ना स्टार्टअप्स, ये बेसिकली उनके पास में बिजनेस सेंस कम होता है बट उनके पास में इनोवेशन की सेंस बहुत ज़बरदस्त होती है, ड्राइव बहुत ज़बरदस्त होता है। पर उनके ड्राइव को अगर हम लोग कंपेयर करें एसएमईज के साथ में, जिसमें से मैं भी एक आता हूँ, तो हम लोग में ड्राइव विगर और बिजनेस सेंस बहुत ज़बरदस्त होता है बट शायद से किसी जगह पे थोड़ा बहुत इनोवेशन हम लोग पीछे पड़ते हैं। सो ये पूरा जो प्रोग्राम सेट किया गया है वो इस तरह सेट किया गया है कि हम लोग जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है आज की तारीख में, जो कटिंग एज है, उसको समझे और जितना सक्सेस हमने आज की तारीख में स्टार्टअप्स के साथ में किया हुआ है, हम आपके साथ में बैठ के आपके साथ में इंटरेक्ट करते वक्त आप सबके साथ में भी उसी लेवल का सक्सेस हम लोग अचीव कर सकें। ये इंटेंशन से पूरा प्रोग्राम 14 हफ्तों का अंदाजन 28 सेशन का रखा हुआ है, 28 डेज
14 वीक्स ऐसा रखा हुआ है। इंटेंशन ये है कि हम लोग ये थोड़ा सा हैवी रखें, शाम के टाइम पे, इस टाइम पे रखें ताकि सबका खाना वाना हो गया हो और हमारे पास में थोड़ा टाइम हो। अगर नहीं हुआ तो खाना खाते खाते हम लोग सेशन अटेंड कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। ये कोई क्लासरूम जैसा सीन नहीं है कि हम लोग को कुछ करना है। वी इंटेंशन ये है कि इसको जितना हो सके उतना लाइट रखना है एंड हैव फन एंड एंजॉय। आर यू क्लियर पीपल? यस क्लियर। ओके, सो जहां तक मेरा आज का जो सेशन है वो मैंने और विक्रांत ने दोनों ने साथ में इकट्ठा होके बनाया हुआ है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में और बताऊं तो मैं एक 4th जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, चौथी पीढ़ी का धंधे वाला बंदा हूँ जो कि उसी धंधे में काम कर रहा है। यूजुअली ऐसा मानते हैं कि अगर उसी धंधे में काम कर रहे हैं तो सीधा बैठते हैं और गादी पे बैठ गए तो धंधा चालू हो जाता है, धंधा चलता रहता है। मेरा केस ऐसा नहीं रहा है। और मैं आप सबके साथ भी ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या हम सबके बिजनेसेस ऐसे हैं, क्या हम लोग को ये जो एक नई पंछी है, एक नया जिसका नाम इनोवेशन और इनोवेट है, क्या हम लोग को ये सब करने की जरूरत है? सो ये शुरू करने से पहले मैं रियली एक्सपेक्ट करूंगा कि जितने भी लोग हैं आज अभी इस सेशंस में हम एटलीस्ट एक दूसरे को जाने, थोड़ा बहुत एक दूसरे को जाने, थोड़ा बहुत एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को जाने। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं। आपका नाम, आपका बिजनेस और आपने ये प्रोग्राम क्यों ज्वाइन किया हुआ है। 30 सेकेंड्स, शैल यू डू दैट? है ना, एक एक करके। कौन शुरू करेगा? अगर वो पीडीपी आईआईसी की भी मेंबर्स है तो भी आई वांट यू गाइस टू पार्टिसिपेट। सो कैन यू डू दैट पीपल? कौन जाएगा सबसे पहले? मैं करूं? हाँ हाँ प्लीज हर्षद भाई, गो अहेड। ओके, सो मेरा नाम अर्षद पानसुरिया है और मेरा वर्क है वायरलेस सेंसर नेटवर्किंग। और हमने काफी सेंसर डिजाइन किया है आरएफ नेटवर्क से और वायरलेस डिफरेंट सिग्नल लाइक वाईफाई, आरएफ, जिगबी, लोरा, और अभी हम उसमें ही काम कर रहे हैं। और हमारा टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है लेकिन हमको मार्केट की थोड़ा बहुत सेंस नहीं है। हमने आरटीओ का वो वायरलेस सेंसर वो सब किया है लेकिन अभी हम मार्केट में कैसे आगे जाए उसके लिए हम ये प्रोग्राम ज्वाइन किया है। ग्रेट ग्रेट हर्षद भाई ग्रेट। हु इज गोइंग नेक्स्ट? और कौन आ रहा है भाई? राजेश भाई, हेलो राजेश भाई, आर यू विद अस? नहीं सर, Rajesh sir is our ex-VP of One of the Adani speakers? Group. Okay, Yes sir, he is just attending the session. Hello, Rajesh sir. Nice of you to join us today. Pratik bhai, you want to go next? By the way, Pratik bhai is also one of the coaches who is handling the what do you call the prototyping in our team. Pratik bhai. Yes. Hi, Anabhai. Go ahead, tell something about yourself. शू धंधो करो साहब? Okay. मेरा जनरली मेरा R&D इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में है, जनरली स्पेशल पर्पस मशीन वगैरह मैन्युफैक्चरिंग में। और इससे अलावा मीन्स हमारी प्रोडक्ट है HVAC, मीन्स हीटिंग और कूलिंग में। तो जनरली ये प्रोग्राम हमने इसीलिए मतलब डिजाइन भी किया था और इंटरेस्टेड इसलिए है कि हमारी पहुंच है वो मार्केट में ज्यादा मतलब अंदर तक जाए। ओके शनि भाई, કેમ છો? મજામાં? एकदम परफेक्ट। मेरा नाम सनी पंड्या है। ऐसे तो कहने के लिए हम स्टार्टअप है, बट आई एम हियर टू मतलब लर्न हाउ टू स्केल मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बिजनेस। हमारो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बिजनेस है, सोलर ट्री मैन्युफैक्चर કરીએ છીએ અમે લોકો, અને હાઉ વી કેન સ્કેલ ધેટ ઇન્ટરનેશનલી એ શીખવા માટે અહીંયા છીએ। ओके
सुधीर, हेलो सुधीर, आर यू विद अस? फरी नहीं है। कांतिलाल भाई? हेलो, हाँ जी, ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. મારું કેમ નામ છો? કાંતિલાલ પટેલ. તો એન્ડ્સ ગ્લોબલ કરીને કંપની છે, એમાં એઝ અ મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર છું. અને સેમિકન્ડક્ટર ટાઈપ કંપની છે, એસ્કાઈ વીએલએસ વેરિફિકેશનનું કામ કરીએ છીએ. આ પ્રોગ્રામ જોઈન કરવાનો એક હેતુ હતો કે કંપનીને નેક્સ્ટ લેવલ પર કેવી રીતે લઈ જવી. જે એક્ઝિસ્ટિંગ ચાલે છે છેલ્લા 3 વર્ષથી ત્યાં જ મે બી ઘૂમતાઈ રહ્યા છે. તો હાઉ ટુ ઈ સર્કલમાંથી બહાર નીકળીને મોટા સર્કલમાં કેવી રીતના આવો. ग्रेट टाइम. दिव्या, ऑडियो. Unmuted. Yes. Hi everyone. मेरा नाम दिव्य शाह है. हम लोग ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं. आई एम द सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर. जैसे कांति भाई ने बताया, सेम स्टेटस के कुछ सालों से एक ही स्टेटस पे कहीं ना कहीं घूम रहे हैं. तो जस्ट वांटेड टू टेक अ लीप कि अब कैसे आगे बढ़ाया जाए. बस उसी हिसाब से ये कोर्स अटेंड करना है. मतलब एक इंटरेस्टेड रहा हुआ है. ओके, भावेश भाई? अनिल? Sir, Mr. Bhavesh is having some issues with connecting with audio. ओके, दिनेश जी? ओके, जैसे जैसे भावेश भी इज एंटरिंग अगेन, Yes. I guess now it would be a good time to interact with him. Bhavesh bhai, are you with us? चलिए, so okay, Anil ji is from Hyderabad. Savari Media is his company's name. Business intelligence services, content providing services, training development, and IT services is what he does. Savari Farmer Producer Company, vertical farming, integrated aqua, and farms to export is what he is up to. Okay, so question: हम सबको इनोवेट करने की जरूरत है? ये मैं पूछ रहा हूँ. आई एम एक्सपेक्टिंग एन आंसर फ्रॉम यू गाइस. शायद हाँ, क्यों? क्योंकि 3 साल से वहीं घूम रहे हैं, मतलब कुछ तो कमी है. देयर इज समथिंग, कुछ नया सोचना पड़ेगा, ओके, नया Depends, थॉट अप्लाई करना depends. पड़ेगा कहीं ना कहीं तो एनवायरनमेंट के साथ. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. और ये धंधे का मतलब क्या होता है? कोई शाहरुख खान वाला तो व्हाट नहीं डू वी पता. मीन बाय द वर्ड बिजनेस? वो पिक्चर में तो शाहरुख खान बोला धंधा कैसा भी हो, छोटा है बड़ा हो, कुछ था भी डायलॉग, अभी याद नहीं आ वेरी रहा. ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. कांतिलाल भाई, anybody else wants to answer this question? What do we mean by business? लो, शाम का टाइम है, सोने की अच्छी इच्छा होगी, पर अभी तो 9 ही बजे. You still have time. एक ऐसी चीज जो मुझे पैसा दे और सामने वाले को सर्विस का सेटिस्फेक्शन दे. Okay, okay, okay. तो एट बार्टर, पूरे पुराना आदत टाइम में बता बार्टर सिस्टम टाइप. Yes. आई गिव यू सर्विस, यू गिव मी मनी. Yes, very true, very true. So, a person's regular occupation, profession और trade, मतलब कोई भी तरीके का प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और ट्रेड, ये तीनों चीज को बिजनेस बोलते हैं. मतलब अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो इवेंचुअली बिजनेस कर रहे हो आप, क्योंकि आप अपने खुद का टाइम दे रहे हो और सामने से वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आप टाइम दे रहे हो. अलग अलग तरीके से वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. और मेरा आज का इंटेंशन यही है, समझना है, आपके साथ में डिस्कस करना है और आपके साथ में इसको समझना है कि भाई बॉस इस सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों है. ओके, ओके. सो आप जैसे कांतिलाल भी ने सही बताया कि बिजनेस बहुत पुरानी चीज़ है, आजकल की बात नहीं है. जब दुनिया में पैसा भी नहीं हुआ करता था, जब इंसान को के पास में बोलने की भी ताकत नहीं हुआ करती थी, तभी वो पीपल यूज्ड टू बार्टर. आज की तारीख में माना जाता है कि बंदर लोग भी बार्टर सिस्टम पे काम करते हैं. दे हेल्प ईच अदर आउट. सो बिजनेस नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी चीज है.
और ये इसका एक बेसिक सिद्धांत इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि क्या मेरे पास कुछ है जो किसी और को चाहिए, और क्या किसी और के पास कुछ है जो मुझे चाहिए। अगर हम एक दूसरे लोगों को ढूंढ लेते हैं और एक दूसरे की नीड्स को सप्लाई करते हैं या फिर एक दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, तो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। और ये इतनी पुरानी चीज, और इसका इससे ज्यादा लॉजिक नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है पता है? प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि मेरी नीड्स और सामने वाले की नीड्स कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, और हम लोग को जो हम कर सकते हैं उसको देने के लिए, उसको बांटने के लिए लोगों को ढूंढना ज्यादा पड़ रहा है, और जो लोगों को चाहिए वो कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। इसकी वजह से सारे के सारे झमेले हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ बिजनेस एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी नीड टू इनोवेट। और जैसे मैंने बताया कि रेट ऑफ चेंज, मतलब पहले क्या हुआ करता था, जैसे मैंने बताया मैं 4th जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरे ग्रैंडफादर ने इंडस्ट्रियल वाल्व्स बनाना शुरू किया था, और 1962 में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया था, एंड in somewhere around 1985 he retired. So starting from 1985-1987 के आसपास उन्होंने रिटायर किया था। So 1962 में जब शुरू किया था तब उन्होंने गन मेटल के वाल्व्स बनाना शुरू किया था, 2 छोटी साइज के वाल्व्स बनाना शुरू किया था। उनकी कुछ 25 साल की कैरियर में उनको मैक्सिमम 2 बार प्रोडक्ट इटरेशन करने की जरूरत पड़ी थी, कुछ नया करने की जरूरत पड़ी थी अपने लाइफ। गन मेटल के वाल्व में से उन्होंने ISI का सर्टिफिकेशन लिया था, और गन मेटल में से वो कास्ट आयरन में गए थे। ये 2 बार इटरेशन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में, सो ही लेफ्ट उन्होंने अपना पूरा कैरियर निकाल दिया 1 या 2 बार इनोवेशन करके। माय फादर जॉइंड द बिजनेस इन 1979-1980, और 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले से वो अभी ऑफिस कमा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए 79 से लेके 2018 तक वो काफी, मतलब उन्हीं के पास दामोदर होता था, इसलिए मैं यहाँ पे एकेडमिक्स में यहाँ पे घूमने का मेरे को टाइम मिलता था। पिछले 2 साल से उनका आना कम हो रहा है और मेरे ऊपर ज्यादा लोड बढ़ रहा है फैक्ट्री में। तो उन्होंने अपनी जिंदगी में अराउंड 4 से 5 बार प्रोडक्ट इटरेशन किए थे। गन मेटल के वाल्स और कास्ट आयरन के वाल्स उनको लेगेसी में मिले थे, उसमें से उन्होंने IBR अप्रूवल्स का काम किया, उसमें से उन्होंने HVAC इंडस्ट्री में वाल्स का काम किया, उसमें से उन्होंने हेवी केमिकल इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, कास्ट कार्बन स्टील का काम करना शुरू किया, स्टेनलेस स्टील का काम करना शुरू किया, और कुछ ही स्पेशल एप्लीकेशन वाल्स उन्होंने अपने टाइम फ्रेम में ये 20-25 साल में निकाले। अब मैंने अपनी कंपनी में ज्वाइन किया है 2008 में, और आज चल रहा है 2020, तो मुझे हुए हैं अंदाजन 12 साल। और मैं अगर हकीकत बताऊं तो मुझे पिछले 12 साल में कम से कम 6 से 7 बार मिनिमम मुझे अपने बिजनेसेस को चेंज करना, अपने कस्टमर्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करना, अपने प्रोडक्ट्स को नए निकालना जरूरत पड़ा है। भले ही मैं इंडस्ट्रियल वाल्व्स में रहा, पर ये कंटिन्यूसली जरूरत पड़ा है मुझे। एक बहुत ही फेमस स्टोरी है एलिस इन वंडरलैंड। अब हम लोग में से कई लोगों ने सुनी होगी, हम लोग में से कई लोग ने उसकी मूवी देखी होगी। जब ये एलिस करके कैरेक्टर है वो एक रैबिट होल से नीचे जाता है और एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है। एक नन्ही सी लड़की होती है। अब वो नन्ही सी लड़की जैसे ही रैबिट होल में जाके एक नई दुनिया में पहुंचती है तो बहुत तेज दौड़ रही है, इतनी तेज दौड़ रही है, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रही। और उसमें ही एक दूसरा कैरेक्टर है जिसका नाम है कैट। अब जब वो कैट अंदर आती है और वो कैट को पूछती है मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ, तो कैट उसको जवाब देती है, हैटेड कैट उस कैरेक्टर का नाम है, कि वो बोल रही हो, द हैटेड कैट सेज दैट आप शायद से एक बहुत ही धीमी दुनिया से आए हो, क्योंकि ये दुनिया में आपको जितना फास्ट भाग सकते हो आज, उतना तो फास्ट आपको भागना पड़ेगा ताकि आप वहीं पे खड़े रह सको, आगे बढ़ना तो भूल जाओ। सो ये हम सब की सिचुएशन है आज की तारीख। जो रेट ऑफ चेंज है, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, पहले के टाइम में वो 20-20 साल हुआ करता था, 10 से 12 साल हुआ करता था। अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ, मेरे से एक जनरेशन सीनियर्स की बात करूँ, तो वो कम से कम 10 साल हुआ करता था, 7 साल हुआ करता था, 6 साल हुआ करता था। आज की तारीख में हर 2 से 3 साल के बाद में आपका बिजनेस और आपका जो वैल्यू प्रोपोजिशन है, जो आप कर सकते हो, जो दुनिया को चाहिए, जो आप डिलीवर कर सकते हो, वो दुनिया को चाहिए ही नहीं। हर 1000 दिन के अंदर
और एक गुजराती में बहुत पुरानी कहावत है कि 1000 દિવસે खापड़ो गादी गरम है, मतलब इट टेक्स 1000 days तब उसके बाद अपना कुछ बिजनेस में सेंस आना शुरू होता है। अब बॉस बिजनेस में सेंस की बात छोड़ दीजिए, 1000 दिन के अंदर अंदर धंधा ही नहीं बच रहा है। हम इस कंटिन्यूसली चेंजिंग एनवायरनमेंट में, इस फास्ट रेट ऑफ चेंज में काम कर रहे हैं और ये हम लोग को समझना जरूरी है। एलिस इन वंडरलैंड में एक और कैरेक्टर था रेड क्वीन करके नाम का, और रेड क्वीन का जिक्र चार्ल्स डार्विन भी करता है थियरी ऑफ इवोल्यूशन के अंदर। चार्ल्स डार्विन क्या कहता है कि जब इवोल्यूशन होता है तो दो स्पीशीज होती है, एक प्रेडिटर होता है, एक प्रे होता है। एक डियर गिन लो आप और आपका लायन या टाइगर गिन लो, और ये कंटिन्यूसली इवॉल्व होते रहते हैं। जब वो इवॉल्व होते रहते हैं तो एक जो आपका रेस है, एक आपका डियर समझ लो, उसको एक नई स्किल सीखने को मिलती है कि इससे वो बहुत फास्ट दौड़ने की कैपेसिटी रखता है, उसका वेट बहुत लाइट है। तो टाइगर है वो दूसरी स्किल पता करता है कि वो क्लॉज इकट्ठा करता है, वो जंप करना इकट्ठा करता है। डियर है वो अपनी सींग निकालना शुरू करता है और सींग से किसी लायन या टाइगर को मार सकता है। टाइगर है वो उस दूसरी चीज से वो पाउंस करना, छुप के अटैक करना सीखता है, हवा का डायरेक्शन जानना सीखता है, हवा के डायरेक्शन के अपोजिट बाजू में झुकना सीखता है, खुद के ऊपर स्ट्राइप्स इकट्ठा करता है ताकि वो अच्छी तरह कैमोफ्लेज हो सके। और ये कंटिन्यूसली फाइटिंग एनवायरनमेंट, अपने कस्टमर की नीड्स तो चेंज हो ही रही है मित्रों, और साथ साथ में जो चीजें हम कर रहे हैं वो चीजें हमारे कॉम्पिटिटर्स कंटिन्यूस बेसिस पे कॉपी कर रहे हैं या हमसे बेहतर कुछ कर रहे हैं। और ये कंटिन्यूस फाइट चल रही है ताकि हम एक दूसरे को आउट परफॉर्म कर सके और मार्केट शेयर में कुछ खाने के लिए ला सके घर के लिए। बट इस पूरी प्रोसेस में इवेंचुअली क्या हो रहा है कि हम कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे को खा जा रहे हैं और हम खुद कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे, और ये है जिसकी वजह से हम लोग कुछ करने की जरूरत है। इसका तोड़ भी बताया गया है, पता है, रेड क्वीन स्ट्रेटजी के अंदर इसका तोड़ ये बताया गया है कि अगर आपके कॉम्पिटिटिव मार्केट स्पेस हो रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि बॉस मार्केट है, बट मार्केट आज से 3-4 साल बाद नहीं रहने वाला है। मार्केट अच्छा है, मार्केट इंटरेस्टिंग है, बट मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कस्टमर की नीड्स चेंज हो रही है, और मैं एक पत्ता रख रहा हूँ, सामने वाला दूसरा पत्ता रख रहा है, इवेंचुअली हम दोनों में से कोई कुछ कमा नहीं पा रहा है। उसका सोल्यूशन दिया गया है थियरीज के अंदर, जिसको बोला गया किल द क्वीन। आप अपने पैस्चर्स बदलो, आप जहाँ पे खाना खा रहे हो उस जगह को बदलो, आप अपने कस्टमर बेस को बदलो, आप आपको खुद को इस तरह ढालना शुरू करो कि अगर आप जंगलों में रह सकते हो तो आप पेड़ पे चढ़ना शुरू करो, आप कुछ नई चीजें ट्राई करना शुरू करो। और ये चीज, ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको ही इनोवेशन भी कहा गया है, इसी का ही एक फॉर्म इनोवेशन है। और मेरे मुताबिक इस चीज के लिए हम सबको कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। बाय द वे, कहीं पे किसी को कोई भी डाउट क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे पूछिएगा, मैं ये कॉन्वर्सेशन रखना चाहता हूँ, ना कि कथा करना चाहता हूँ। ये मोरारी बापू की कथा नहीं है, ये निर्मल बाबा का दरबार रखने का ट्राई किया गया है, ठीक है। सो आस्क, मुझे पूछो, हम लोग का एक 2 वे कॉन्वर्सेशन रखने की मेरा इंटरेस्ट है। एक चीज हुआ करती थी पहले जिसको बोलते थे जोग्राफिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जोग्राफिक लोकेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे घर के पास में किराना स्टोर वाला है और उसके पास में कुछ किराना मिल रहा है, मतलब गेहूं मिल रहा है, राइस मिल रहा है, और मैं उसी के पास जाता हूँ क्योंकि बॉस पास में है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है, मुझे 10 स्टेप्स दूर जाने की जरूरत है, उससे अच्छा मैं यहाँ पे इसके पास ही आज लेके ले लेता हूँ। और दोनों जगह पे प्राइसेस में 1-2 रुपए का फर्क हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की तारीख में करंट लॉजिस्टिक सिस्टम के अंदर क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतना कम हो रहा है कि हम लोग का ये ज्योग्राफिकल लोकेशनल एडवांटेज, जिसकी वजह से पूरी की पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी चल रही है और पूरी की पूरी ट्रेडिंग इंडस्ट्री चल रही है और नॉन कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चल रही है, उस सब का टाइम बुरा आने वाला है और रातर आ चुका है और आ रहा है। एक एग्जांपल अगर हम लोग डिस्कस करें तो पहले के टाइम पे से अहमदाबाद में अगर कोई है तो मेरे लिए सर्व करना भरूच को या फिर गांधीधाम को बहुत इजी हुआ करता था। बट आज की तारीख में मेरे जो कॉम्पिटिटर्स कोलकाता बैठे हैं उसके प्राइसिंग और मेरे प्राइसिंग में ट्रांसपोर्टेशन की वजह से 1-2% का भी डिफरेंस नहीं बचा है, 1-2% का भी डिफरेंस नहीं बचा है।
और अगर उनके पास वो प्राइस एडवांटेज हो जाता है क्योंकि उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज कुछ अलग है, क्योंकि उनके वहाँ कुछ रॉ मटेरियल हमसे बेटर मिल रहा है, बेटर प्राइस पॉइंट से मिल रहा है, तो हमको खा जा रहे हैं। चाइना आज की तारीख में ये शब्द हम लोग बहुत सुन रहे हैं, हर बार सुनने वाले हैं। ये है क्या? क्योंकि पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 10 से 12%, 15% हुआ करता था, आज की तारीख में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट के 3% हो गया है। अगर मैं कोई भी बड़ा ऑर्डर ले लूँ तो 3%, दैट इज ऑल, 3% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। उतना प्राइस डिफरेंशियल पे ऊपर कौन काम करेगा, किस तरह काम करेगा? इसकी वजह से ज्योग्राफिकल लोकेशनल एडवांटेज, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज पहले हुआ करता था, वो आज की तारीख में एग्जिस्ट नहीं करता है। और हम लोग को जो उसी वजह से एडवांटेज हुआ करता था कि बॉस अहमदाबाद में अगर काम करने वाले लोग हैं, कास्टिंग इंडस्ट्री वाले लोग हैं, तो सिर्फ 5 जन हैं, या फिर अहमदाबाद में आईटी कंपनी के अंदर प्रोग्रामिंग करने वाले लोग हैं तो 3 जन हैं, अहमदाबाद में आईओटी की जानकारी रखने वाले लोग हैं तो सिर्फ 10 जन हैं। आज वो सिचुएशन नहीं है। हर रोज, हर बार, हर साल हजारों लोग आ रहे हैं मार्केट में और हमसे बेटर जानकारी लेके आ रहे हैं। और क्योंकि वो हमसे बाद में ट्रेन हुए, उनके पास टेक्नोलॉजिकल नोहाउ भी हमसे लेटेस्ट है, उसकी वजह से जो करंट बिजनेसेस है उन सबको बहुत बड़ी एक चैलेंज फेस करने की जरूरत पड़ रही है, ताकि हम सबको कंटिन्यूसली अपडेट होने की जरूरत पड़ रही है। और इन सब चीजों की वजह से आज की तारीख में देयर इज अ नीड फॉर अस टू इनोवेट। सो पहले क्या हुआ करता था, हम लोग नया धंधा ढूंढते थे, हम लोग नई चीज करने का ट्राई करते थे, क्योंकि हम लोग को मजा आता था, हम लोग को ज्यादा पैसा कमाना था, इसलिए हम लोग ये किया करते थे। बट आज की तारीख में हम लोग को ये करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है ताकि हम सर्वाइव कर सके, ताकि हम लोग टिक सके। हम लोग सिर्फ उतना कर सके ताकि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को, जो हम लोग को एसेट्स मिले हैं, उसको उतने लेवल पे एसेट्स पे उसको पास ऑन कर सके, रादर देन उसका 2x 3x 4x कर सके। मैं अपने इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे अगर 100 एकड़ जमीन मिली है और उसकी 100 एकड़ जमीन की वैल्यू कुछ से 1000 करोड़ होगी, आई विश होगी, ऐसी इतनी जमीन मास मेरे पास में नहीं है, बट अगर वो है तो मेरे पिताजी, मेरे ग्रैंडफादर ने वो 1 रुपये एकड़ में ली हुई थी और मेरा 100 एकड़ का 100 एकड़ ही रहा है, राइट। वो उसको मैं नहीं, अगर मेरे ग्रैंडफादर ने पुश्तैनी लोगों ने उसको 100 एकड़ इकट्ठा करके मुझे हैंड ओवर की हुई है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसमें 110 कर सकूं, 120 कर सकूं, 130 कर सकूं। वो तो आज की तारीख में भूल जाने वाली बात है। क्या मैं 100 एकड़ का 100 एकड़ अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे पाऊंगा? क्या मैं उतना लैंड मास, क्या मैं उतना गोल्ड मास, क्या मैं उतनी प्राइस वैल्यू नेगेटेड, मतलब इन्फ्लेशन वैल्यू नेगेटेड, क्या मैं पास ऑन कर सकता हूँ? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को हम लोग को आंसर करने की जरूरत है जब हम लोग एसएमई ओनर्स के बारे में बात करते हैं, जब हम लोग कन्वेंशनल बिजनेसेस के बारे में। ये सर्वाइवल का टाइम है, और अगर आप सर्वाइव कर गए खास करके कोविड के बाद, तो फिर देयर इज अ डे टुमारो, क्योंकि मार्केट प्लेस में अपने आप एक श्रिंकेज होने वाला है, हम लोग के पास टाइम मिलने वाला है शायद से कुछ एक इंडस्ट्रीज में। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कई सारे इंडस्ट्रीज की एग्जिस्टेंस ही नहीं बचने वाली। हम लोग को सोचना है कि हम क्या कर सके, क्योंकि वो जैसे जो इंडस्ट्री की एग्जिस्टेंस आज नहीं बच रही है, वैसे ही एक पॉइंट ऑफ टाइम हमारा भी आएगा जब हमारी इंडस्ट्री की भी एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आएगा। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम लोग उसकी तैयारी के लिए कुछ कर रहे हैं? इस चीजों के लिए आपको इनोवेशन करने की जरूरत है। अभी तक किसी को कुछ पूछना है? हेलो? नो। ओके। एक बहुत ही बड़ा दूरदर्शी बंदा रह चुका है, और इसकी एक किताब थी, थिंक एंड ग्रो रिच, नहीं, इसकी किताब का नाम था विनिंग। यस, विनिंग वाज द बुक्स नेम। अमेजिंग बुक है, चांस मिले तो पढ़ने का चांस मिले तो लीजिएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इस बंदे ने कही हुई है कि अगर रेट ऑफ चेंज बाहर जितना है उससे अगर रेट ऑफ चेंज अंदर कम है, तो फिर समझ लीजिए क्या कि हम लोग मरने वाले हैं बहुत जरूरी। ये बंदा ऐसा था, जब जीई मरने की कगार पे थी, कुछ बचा नहीं था, तब इसको हैंड ओवर किया गया था, और वहां से उसने इस कंपनी को पूरा टर्न अराउंड करके काफी आगे तक लेके गया हुआ था। इसका एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल था, अगर आप टॉप 1 और 2 में नहीं हो तो धंधा बेच दो, और अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो तो सर्वाइव करने के लिए एक ही रास्ता है, यू बी एट द टॉप ऑफ इट। चीज समझने वाली है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि रेट ऑफ चेंज
आज की तारीख में मेरे ग्रैंडफादर के टाइम पे 15 साल के अंदर एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हुआ करता था, मेरे फादर के टाइम पे 10 से 6 साल के आसपास हो गया, आज की तारीख में वो कम होके 3-3 साल हो चुका है। क्या हम अपने बिजनेसेस के अंदर उस रेट ऑफ चेंज को मैच करने वाला रेट ऑफ चेंज अपने बिजनेसेस में लाने के बारे में सोच भी रहे हैं आज की तारीख में? क्या हम लोग हर 3 साल में, हर 4 साल में एक छोटा सा आइडिया, छोटा सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी के पीछे ट्राई भी कर रहे हैं? एक नया प्रोडक्ट क्या ऐड कर रहे हैं? एक नए बिजनेस को हम लोग एक्सप्लोर करने का ट्राई कर रहे हैं क्या? अगर नहीं कर रहे हैं तो समझिए हम लोग जिस रेट ऑफ चेंज से आगे बढ़ रहे हैं उससे दुनिया बहुत फास्ट आगे बढ़ रही है, और इसका एक ही संकेत है, और संकेत यह है कि अंत नियर है, अंत पास में है। और इसलिए हम लोग को इनोवेशन करने की जरूरत है, इसलिए हम लोग को इनोवेशन समझने की जरूरत है। सो एक जैसे मैंने बताया था, डू एमएसएमईज नीड टू इनोवेट। एक वन ऑफ आज पार्टिसिपेंट्स में वो नहीं है, बट एक वेरी वेल नोन ओल्ड बिजनेस अहमदाबाद का है, और उसका भी नया एक बिजनेस इंटरेस्टिंग है, ग्राफीन वो बना रहा है यहाँ पे at practically world's cheapest price, and he also owns a couple of patents, और इंडियन आर्मी के साथ में वो काम कर रहा है आज की तारीख में। मैं इस प्रोग्राम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने उसको भी पूछा, बॉस तेरा बहुत वेल एस्टैब्लिश बिजनेस है, उसका फैमिली बिजनेस है, वो 3 जनरेशन से है, और वो लोग बेसिकली गोल्ड के इक्विपमेंट, मतलब गोल्ड की ज्वेलरी बनाने के लिए के इक्विपमेंट बनाते हैं। मतलब अपने जो एक्सटेंशन की शीट्स होती है, आपके स्ट्रिप्स होती है, प्रिसीजन वाली स्ट्रिप्स होती है, स्पेसिफिक वेट के साथ में स्ट्रिप्स होती है, वो गोल्ड और सिल्वर के लिए बनाते हैं। एंड ही वाज टेलिंग मी दैट उनके ग्रैंडफादर ने ये डिज़ाइन जब करने शुरू की थी तो मार्केट में वो और बाटली बॉय सिर्फ 2 ही कंपनी हुआ करती थी। बाटली बॉय, फॉर पीपल हु आर नॉट अवेयर, इट्स एन लेगेसी ओल्ड एक्सट्रीमली वेल एस्टैब्लिश्ड heavy engineering unit based out of Surat, and it has some of the most amazing products out there as far as heavy engineering is concerned. जबरदस्त काम कर रहा है। गोदरेज के साथ उनका बहुत क्लोज टाई अप है, पारसी फैमिली डूइंग सम अमेजिंग स्टफ। सो दे सेड कि बाटली बॉय और हमारे सिवा मार्केट में कोई नहीं हुआ करता था, बट हमारे मतलब मार्केट में हम लोग का प्राइस पॉइंट अगर 10 रुपए है तो बाटली बॉय का 15 है, और हम लोग के पास क्वालिटी में सेम होने की वजह से यूज्ड टू बी बुक्ड। ही स्टार्टेड सेइंग दैट हमने इनोवेशन करना शुरू किया, हमने प्रोडक्ट इनोवेशन करना शुरू किया, हमने मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन करना शुरू किया, हमने हमारी सारी की सारी कन्वेंशनल मशीन को चेंज करके सीएनसी बेस करना शुरू कर दिया। मार्केट में आज की तारीख में लेबर का बहुत बड़ा इश्यूज है, हम लोग 4 जन की टीम 19 इक्विपमेंट चला रही है आज की तारीख में, दैट इज व्हाट ही वाज सेइंग। तो मैंने बोला तो बॉस वाई आप अकेले लड़के हो तो आपने बिजनेस क्यों ज्वाइन नहीं किया? ही सेड अरे भाई ये सब बढ़िया है, बट मैं जानता हूं आज से 5-6 साल बाद में मेरा मार्केट नहीं रहने वाला है। बोला क्यों? ही सेड के आज की तारीख में हम लोग सीएनसी मशीन्स को यूज करते हैं, हम लोग बेंडिंग मशीन्स बना रहे हैं, स्ट्रिपिंग मशीन्स बना रहे हैं, बहुत हाई एक्यूरेसी की मशीन्स बना रहे हैं, बट कल नई एज अ मैटर ऑफ पिछले 10 साल में नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग गोल्ड के अंदर होना शुरू हो गया है, और वो बहुत सस्ता पड़ता है, और इसकी वजह से मेरे इक्विपमेंट लोग लेना कम कर रहे हैं। एक दूसरी बात, मेरा इक्विपमेंट है उस अगर 15 साल 20 साल से पहले कोई दूसरी बार लेने के लिए आता भी नहीं है, क्योंकि वो इतने ही रोबस्ट बनाए गए, तो मैं क्या करूं? एंड ही हैज अ वेरी वैलिड पॉइंट। समझने और सोचने की बात यह है कि हम लोग इस चीज को अपने कोर कॉम्पिटेंसीज को समझ के और क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना हम लोग कभी सोचते नहीं है। क्या मेरे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या मेरे पास जो जानकारी है, जो मेरे पास में आज की तारीख में कोर कॉम्पिटेंसीज है, उसको हमने इतना फोकस करके बैठे हुए हैं कि बॉस मेरे यही क्लाइंट है और इन्हीं के साथ मुझे जीना है और इन्हीं के साथ मुझे मरना है। बट देन मार्केट में और बहुत सारे लोग हैं जिसको आप जैसी रिक्वायरमेंट, आप जैसी जानकारी, आप जैसी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, आप जैसी इनोवेशन, आपकी जैसी अंडरस्टैंडिंग की सख्त जरूरत है, बट आपको ढूंढने का दिमाग में ख्याल नहीं आ रहा है। और इसकी वजह से हम लोग वैसे ही जो एक रेड क्वीन की थियरी थी और थियरी ऑफ इवोल्यूशन थी, हम कंटिन्यूसली एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं और नए मार्केट में से एंटर करने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, जोग्राफिकल एक्सपांशन हो रहा है, कई लोग इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो भी मेरे मुताबिक एक फॉर्म ऑफ ग्रोथ है।
मेरे मुताबिक अगर मैं किसी चीज को इनोवेशन बोलूंगा तो वो दो चीजें होंगी, वैल्यू, क्रिएटिविटी। आपको जो जानकारी है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर वो आपकी क्रिएटिविटी आती है, आपकी टेक्नोलॉजी आती है। अगर वो टेक्नोलॉजी किसी और के लिए वैल्यू क्रिएट कर रही है तो आप इनोवेशन कर रहे हो। That's it. ये मेरी डेफिनेशन है। ये अभी तक किसी जगह पे लिखी नहीं गई है, शायद से कभी चांस मिलेगी तो कभी लिखने का चांस मिलेगा तो लिखेंगे, बट दिस इज व्हाट माय इंटेंशन हैपेंस टू, दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग हैपेंस टू। मेरे मुताबिक इन सब रीजंस की वजह से हर एक एमएसएमई को ग्रो करने के लिए, स्केल करने के लिए तो चाहिए ही चाहिए, बट सर्वाइव करने के लिए भी आज की तारीख में इनोवेट करने की सख्त जरूरत है, वैल्यू क्रिएट करने की सख्त जरूरत है। आप सबके पास, रादर हम सबके पास कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कोर कॉम्पिटेंसीज है जिसकी वजह से हम इतने टाइम तक सर्वाइव कर पा रहे हैं। हम लोग को वो जानना जरूरी है, हम लोग को वो समझना जरूरी है, और वो जानने के बाद, समझने के बाद और किस किस लोगों को चाहिए चीजें चाहिए और किस किस लोगों को प्रॉब्लम है, उनको ढूंढना जरूरी है, उनको बताना जरूरी कि आप एग्जिस्ट करते हो, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। बहुत हाईली पॉसिबल है कि हम लोग यहाँ पे आज 20 जने हैं, हम हमारे ग्रुप के अंदर ही 4 लोग ऐसे होंगे जिसको एक दूसरे की सख्त जरूरत हो, बट हमको नहीं पता हो, बिकॉज कई बार हम लोग अपने इतने फोकस में रहते हैं कि हम लोग वो नहीं सोच पा रहे। इस रीजन की वजह से एमएसएमई को इनोवेशन करने की जरूरत है। मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ और ये इंक्यूबेशन सेंटर ये क्यों कर रहा है। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप सबके साथ इंटरेक्ट करते वक्त, स्टार्टअप्स के साथ इंटरेक्ट करते वक्त मेरे दिमाग का 30% भाग हमेशा मेरी कंपनी में चलता रहता है। तो मैं जो आपको बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा, मैं खुद को भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी उसी नैया में बैठा हूँ जिस नैया में आप सब लोग बैठे हैं। मैं खुद इनोवेट करना चाहता हूँ, और ये यूनिवर्सिटी ये क्यों कर रही है, ये यूनिवर्सिटी भी ये इसलिए कर रही है क्योंकि उसको भी खुद सर्वाइव करना है। वो आज टॉप पे है। अगर कोई बंदा 2.5 लाख रुपए साल के देके बीकॉम की फीस देके वो बीकॉम कर रहा है और वो फिर भी फुल जा रहा है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पंडित दीनदयाल पेट्रोल यूनिवर्सिटी। बट देन as rivers are cradles of innovation, are cradles of civilization, जैसे नदी के आजू बाजू सिविलाइजेशन खड़ा होता है, उसी तरीके से यूनिवर्सिटी के आजू बाजू इकोनॉमिक्स खड़ा होता है, कॉमर्स खड़ा होता है, इनोवेशन खड़ा होता है। ये चीज हम एट यूनिवर्सिटी लेवल, अगर मैं खुद को इंटरेक्ट करता मानता हूँ तो मैं समझता, और ये यूनिवर्सिटी में हम लोग इंटरेक्ट करते वक्त बता रहे हैं, और ये आपके साथ में इंटरेक्ट होते हम जेन्युइनली, होल हार्टेडली क्रेडल ऑफ इनोवेशन बनने का ट्राई कर रहे हो, और इसीलिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि हम आपको समझ सके, आपकी नीड्स को समझ सके, आपके साथ में इंटरेक्ट कर सके, आपके नीड्स को हम लोग सॉल्व कर सके। क्योंकि अगर मैं आपकी नीड्स को सॉल्व करूंगा और हम लोग आपकी नीड्स को सॉल्व कर पाएंगे, यूनिवर्सिटी आपकी नीड्स को सॉल्व कर पाएगा, इन प्रोसेस वैल्यू क्रिएट होगा, और वैल्यू क्रिएट अगर कर सकते हैं तो कैप्चर करना तो बहुत आसान है। इसके बारे में डेप्थ में हम लोग आगे भी बात करेंगे। कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं, जैसे कि अगर आप कोई भी जगह पे R&D करते हो, कोई भी जगह पे रिसर्च करते हो, ये हम सब करते हैं, हमको नहीं पता होता पर हम करते हैं। हम लोग को कुछ टारगेट्स होते हैं नए प्रोडक्ट इनोवेशन के बारे में, तो हम लोग कई बार टेक्नोलॉजी की वजह से अटक जाते हैं, कई बार फंडिंग की वजह से अटक जाते हैं, कई बार गवर्नमेंट की स्कीम के पीछे जाते हुए चप्पल घिसते हुए अटक जाते हैं। ये सब चीज़ों का सोल्यूशन एक यूनिवर्सिटी के पास बहुत आसानी से हो सकता है, और PDPU के पास बहुत ज़बरदस्त ऑलरेडी है, और उसको लिवरेज करके आपके साथ में इकट्ठा होके इसको लिवरेज करके हम सब आगे बढ़ सके खुद की बिजनेसेस में। ये इंटेंशन से ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। सो एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स टिल नाउ कि हमको इनोवेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस, करना चाहिए। एक बताता हूं, आपके ही इस ग्रुप में 5 या 6, 7 जितने स्टार्टअप्स बैठे हुए हैं, और वो स्टार्टअप्स बहुत खतरनाक लोग हैं। स्टार्टअप्स का डिफरेंस और एक SME का डिफरेंस मेरे मुताबिक सिर्फ इतना है, ये स्टार्टअप बहुत ही फास्ट, बहुत ही जबरदस्त स्पीड के साथ एक पूरी इंडस्ट्री को तबाह करता है, वो डिस्टर्ब करता है, और खुद डिस्टर्ब करने के बाद खुद के लिए वैल्यू क्रिएट करता है।
जैसे कि मिस्टर शनि पंड्या यहाँ पे हैं, जो कि वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द इंक्यूबेशन सेंटर है, जबकि वो फाइनल ईयर 3rd ईयर के स्टूडेंट तब उन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किया था, और आज इंक्यूबेशन सेंटर को दे दिया है और खुद का बिजनेस कर रहे हैं एज अ स्टार्टअप, और गवर्नमेंट के 3.5 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं। शनि 21 पेटेंट, 21 आईपीआर फाइल किए, कितना आईपीआर फाइल किया आपने अभी तक? 16 16 आईपीआर सिर्फ इन्होंने फाइल की हुई है। किस चीज में? सोलर इंडस्ट्री में। सोलर रूफटॉप सोलर, इसमें तो बहुत सारी कंपनियां मर नहीं रही है। ये है जो आपके सामने लोग हैं जो कि उस पूरी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको अगर सोलर के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो कॉस्ट का, वो जगह होती है, और जगह की रिक्वायरमेंट 1/10 करके पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट की टोटल वैल्यू 1/10 करके ये साहब है जो कि काम कर रहे हैं, और एक स्टार्टअप होके कुछ पैसे रेस किए बिना, कोई वेंचर कैपिटल फंड नहीं किए बिना, बकायदा गवर्नमेंट लोन लेके, वो भी CGTMSE मतलब कोलेटरल दिए बिना, आज की तारीख में ये महाशय 3.5 करोड़ रुपए के गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो भी सब जुगाड़ खुद के हेल्प से लगा के, ना कोई कॉन्टैक्ट, ना कोई गवर्नमेंट कनेक्ट्स, खुद गवर्नमेंट कनेक्ट्स बना के, खुद टेंडरिंग को सेट करके विदाउट एनी बैकग्राउंड कर रहे हैं। ये इतनी फास्ट इंडस्ट्री को चेंज कर रहे हैं। सोलर इंडस्ट्री वाले जितने भी लोग हैं वो जब तक समझना शुरू करेंगे तब तक इन्होंने वो सारी चीजों के ऊपर पेटेंट कर दिया होगा, और गवर्नमेंट के अंदर टेंडर में आ चुका होगा कि बॉस इसके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस 10 साल का, 10 करोड़ रुपए का, 5 करोड़ रुपए का है, वही पार्टिसिपेट कर सके और कोई और नहीं कर पाएगा। ये सिचुएशन हो रही है। ये है पावर स्टार्टअप का। आप समझिए, आपके आजू बाजू में, मेरे आजू बाजू में, हम सबके आजू बाजू में कोई ना कोई ऐसा नया बंदा या बंदी आ रही है इंडस्ट्री के अंदर, जो कि हम लोग का पूरा मार्केट तबाह करने के पीछे पड़ा हुआ है, और हम लोग को उनको जानना, समझना और उसको रिएक्ट करना, उनके सामने रिएक्ट करना, ताकि हम सर्वाइव हो सके, ग्रो कर सके और स्केल कर सके, सख्त जरूरी है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी नीड टू इनोवेट। ओके, सो मैं कुछ एक एग्जांपल्स आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा ताकि हम लोग इसको बेटर समझ सके। आप में से कितने लोग अहमदाबाद से हैं? मैं अहमदाबाद से। ओके, अहमदाबाद से हूँ। ओके, आप में से कितने लोग ने पॉटर ऐप पता की हो? आपको पता है पॉटर करके एक ऐप है? We are regularly using it. Okay, so that is one another of the startups that you जो कि जिन्होंने 10 करोड़ रुपए प्लस रेज किए हुए। जो भी कठवाड़ा, गांधीनगर, वटवा, नरोड़ा साइड पे काम कर रहे हैं, हम सबके वहाँ पे एक वो टेम्पा वाला बांधा हुआ है, या फिर हम में से कई लोगों के पास खुद के टेम्पोज है ना। ये पॉटर करके नेशनल लेवल की एक ऐप है, जैसे गूगल हुआ, जैसे अपना ओला या उबर हुआ करती है, वैसे पॉटर करके ऐप है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस ऐप में डाउनलोड करके जहां से मटेरियल पिकअप करना है उसका डेटा डालना है, और जहां पे डालना है उसका डेटा डालना है, और वो मार्केट से अंदाजन कम से कम 30 गुना कम रेट्स के ऊपर वो सर्विस प्रोवाइड कर देती है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं ऑफिस पे पहुंच गया हूँ और मेरे घर पे लैपटॉप रह गया है, तो मेरे घर से लैपटॉप लेके मेरे यहाँ पे पहुंचा देती है। एंड वो बहुत, और छोड़िए लैपटॉप, तो मुझे यहाँ से मेरे किसी दोस्त के वहाँ कुछ पहुंचाना है, मेरे घर से लेके उसके यहाँ पहुंचाना है, तो वो खुद संभाल लेते हैं। और एक 407 से लेके, एक 3 व्हीलर टेम्पो से लेके, सारी हेल्पर के साथ से लेके, ये सारी फैसिलिटी विद इन 15-20 मिनट्स सॉल्व कर रही है अहमदाबाद में, हम सबके आजू बाजू में। अब समझिए बॉस, जो आज की तारीख में लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री की हालत है, क्योंकि वेल नोन कंपनीज ARC, TCI, गति, जो कि वेल एस्टैब्लिश कंपनीज है, हमारे साथ में पढ़ने वाली एक और कंपनी चार्टर लॉजिस्टिक्स करके है, उन लोग की हालत देखिए आजकल, दे आर नॉट मेकिंग मनी, ऐसा नहीं बना रहे। पॉटर से 100 गुना 1000 गुना बड़ी होगी, बट ये नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म है, सिकोया का फंड मिला हुआ है इनको, और ये पूरी इंडस्ट्री को तबाह करके बदल रहे हैं इट अ वेरी फास्ट पेस। मुझे आज की तारीख में बैंगलोर की किसी एक जगह से कुछ मटेरियल उठा के, कुछ पेपर्स उठा के बैंगलोर में किसी और जगह पे पहुंचाना है, तो मैं अहमदाबाद में बैठे बैठे वो कर सकता हूँ।
इतनी आसान कर दी है इंडस्ट्री ने इस इंडस्ट्री को, और जो कि इतना पुराना इंडस्ट्री है, इतना वेल एस्टेब्लिश इंडस्ट्री, इसमें कितने सारे लोग आ गए हैं और कितने सारे लोग मर के चले गए। महिंद्रा आया था, महिंद्रा ने छोड़ दिया, टाटा आया था, टाटा ने छोड़ दिया, बट देन दिस स्मॉल यंग कंपनी जिसके पास ना खुद की एक ट्रक है, ना खुद की एक 407 है, ना खुद की कोई कैपेसिटी है, ये कर रहा है। मैं यही चीज ओला भी कर रहा है, यही चीज उबर भी कर रहा है, पर वो इंटरनेशनल ब्रांड्स है। मैं पॉटर के बारे में बताना इसलिए चाहता था क्योंकि ये आप सबकी स्किन के लिए आज की तारीख में ये कर रहा है और हमको नहीं पता ये कर रहा है। आज की मैं बात करूं, मैं आज ये डिस्कस कर रहा हूं, पर मुझे आज की तारीख में मैं बैठा हुआ था कुआ, विच इज अराउंड 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सिटी। मुझे कुछ इमरजेंसी मटेरियल वस्त्रापुर से इकट्ठा करके गांधीनगर पहुंचाना था, और मैं भूल गया था कि पॉटर करके कंपनी का एग्जिस्टेंस है। हम लोग तब जबकि हमको ये सख्त जरूरत होती, हम लोग को ये सब चीजों ये सब डिस्ट्रप्शन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और हमारी इंडस्ट्री में कौन हमें इतनी बुरी तरीके से पीटने वाला है या कौन किस तरीके से घुस रहा है, वो समझना बहुत जरूरी है। कौन सी नई टेक्नोलॉजी है जो कि हम लोग का एग्जिस्टेंस ही इररिलेवेंट कर देने वाली, उसको जानना, उसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, और उसके सामने रिएक्ट करना बहुत जरूरी है। दैट इज पॉटर फॉर यू। ओके, thousands of logistics players, but one outsider who changed the game, literally changed the game in a big way. Trucking sector totally unorganized, कुछ organized players है जिसकी हालत खराब हुई है, brokers बहुत पैसा कमाते हैं, उसकी जगह पे ये लोग ने इतना इंटरेस्टिंग काम किया हुआ है। हम लोग SME जिसको सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं, 150 करोड़ रुपीज रेस किए हुए उसने 500 करोड़ के वैल्यूएशन में, और ये सिर्फ 5 साल की बात है। 5 साल पहले कंपनी हुआ ही नहीं करती थी, 5 साल में 0 से 500 करोड़ का वैल्यूएशन कर पाई है कंपनी, और इसके बारे में हमको जानना कितना जरूरी है। एजुकेशन, क्यों ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, क्यों ऐसे प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए? मेरे मुताबिक एजुकेशन की 3 पहलू है, नॉलेज सेट, स्किल सेट, माइंड सेट। नॉलेज सेट मतलब क्या होता है? जानकारी। आज की तारीख में जानकारी नेट पे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, बट फिर भी क्योंकि हमारे पास में टाइम नहीं होता है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में इतने मशगूल हो गए होते हैं, क्योंकि हम हर रोज की फाइट के अंदर इतने पड़े हुए होते हैं कि हम लोग के पास डेडिकेटेड टाइम नहीं होता कि हम नई चीजें सीखने के बारे में सोचे, नई चीजों के बारे में पढ़ने के बारे में सोचे। और इसके लिए कंटिन्यूअस एजुकेशन होना जरूरी, ताकि आपका माइंड क्लियर रहे, ताकि आपका थॉट प्रोसेस क्लियर रहे। और ये एजुकेशन जरूरी है ताकि आपको नॉलेज से नई चीजें जानने को मिले। स्किल सेट, मुझे सॉलिड वर्क्स नहीं आता है, मैं ऑटोकैड वाला बंदा हूँ। मैकेनिकल वाले अगर रूम में है तो उनको ये अंदाजा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बट मेरे नीचे काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन लोग को सॉलिड वर्क्स के सिवा चलता नहीं है। और मैं फैक्टफुली एग्री करता हूँ कि सॉलिड वर्क्स ऑटोकैड से 100 गुना बेटर है। हाँ, मैं उनको इंस्ट्रक्ट कर पाता हूँ कि बॉस इसको इस तरह बनाओ, इसको इस तरह बनाओ, इसका डिजाइन इस तरह करो, ये स्पेसिफिकेशन है। पर मुझे ऑटोकैड ऑपरेट करना जितनी पेस से, जितनी स्पीड से, जितना फटाफट आता है, उतना सॉलिड वर्क्स नहीं आता है, और दुनिया सॉलिड वर्क्स की तरफ जा रही है। दैट इज द रीजन व्हाई वी नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ सॉलिड वर्क्स एंड द स्किल एंड प्रैक्टिस ऑफ सॉलिड वर्क्स, सो टू से। स्किल का मतलब क्या हुआ? बेसिकली कोई भी चीज अगर आप सीखने के बारे में सोचते हो, स्विमिंग के बारे में सोचते हो, तो स्विमिंग सीखने के लिए आप एक बुक पढ़ोगे। हाँ, ये इसको ब्रेस्ट स्ट्रोक बोलते हैं, इसको बटरफ्लाई स्ट्रोक बोलते हैं, इसको फ्री स्टाइल बोलते हैं, इसको बैक स्ट्रोक बोलते हैं। जितना भी पढ़ लो आपको कभी स्विमिंग नहीं आएगा, आपको कभी साइकिलिंग नहीं आएगा। ये पढ़ते पढ़ते आपको इस सीखने के लिए आपको वो करना पड़ेगा। आप करोगे तो आप गिरोगे तो सीखोगे तो एक नई स्किल इकट्ठा करोगे, वो स्किल सेट होती है। एक एजुकेशन के लिए नॉलेज सेट जरूरी है, स्किल सेट जरूरी है। आखिरी और जो सबसे डिफिकल्ट है वो है माइंड सेट। हम सब एंटरप्रेन्योर्स के अंदर एक माइंडसेट ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है। हम लोग को हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखती है, बट कई बार क्योंकि हम अपने धंधे में, क्योंकि हम अपने अपॉर्चुनिटीज इतने मशगूल हो गए हैं कि हम लोग का वो जो कटिंग एज किलर इंस्टिंक्ट, जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, हवा में से पैसे कैसे निकालते हैं, जो हम लोग की कैपेसिटी, इनर इंस्टिंक्ट है, उसको भूल जा रहे हैं। वो माइंडसेट को भूल जा रहे हैं, वो ट्रेडर माइंडसेट को भूल जा रहे हैं, वो क्रिएटिंग वैल्यू माइंडसेट को भूल जा रहे हैं, वो अंडरस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटीज के माइंडसेट को भूल जा रहे हैं।
जो कि रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको हर 10 साल के बाद, हर 6 साल के बाद नहीं पड़ने वाली। इसकी ज़रूरत हमको हर रोज़ पड़ने वाली है, ताकि वो 100 दिन बाद, 300 दिन बाद थोड़ा ऊपर बढ़ सके, ताकि हम लोग की 1000 दिन की साइकिल पे हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ नया हो। That is why education is important. So I am personally taken a vouch for myself that I am going to be a student for life. मैं जिंदगी भर तक पढ़ने वाला हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ने वाला हूँ, कोई ना कोई डिग्री लेने वाला हूँ, कुछ ना कुछ नई चीज सीखने के लिए पीछे पढ़ने वाला हूँ। और डिग्री के पीछे इसलिए मैं भागता हूँ क्योंकि मेरे को माय वाइफ टेल्स मी कि मैं बहुत सारी पूंछ इकट्ठा कर रहा हूँ, बट मैं इसलिए इकट्ठा कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे लिए एक टारगेट है जो जिसको अचीव करने के पीछे मैं टाइम दे पा रहा हूँ, जिसके पीछे मैं कुछ एफर्ट कर रहा हूँ। और हंसते खेलते एफर्ट करते करते इस तरह सेट हो जाता है कि आप वो चीज़ कर सकते हो। आई वॉन्ट टू बी अ स्टूडेंट फॉर लाइफ। और अगर हम सबको कंटिन्यूसली इनोवेट होना है, हम सबको सर्वाइव करना है, हम सबको ग्रो करना है, हम सबको आगे बढ़ना है, तो हम सबको भी ये स्टूडेंट फॉर लाइफ का माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट वी नीड टू डू। मैं कुछ एक और डिस्कस करने के लिए एग्जांपल्स शेयर करना चाहूँगा। ये अगेन कास्टिंग इंडस्ट्री में से अहमदाबाद में कितनी फाउंड्री होगी? एनीबॉडी? दिव्या आपके तो नेबर है, कितनी फाउंड्री होगी अहमदाबाद में? काउंटिंग तो नहीं है, बट शायद जीवीएमएम आधा इनका है। एआईए की बात नहीं करो, ओवरऑल फाउंड्रीज कितनी होगी? सो मैनी मतलब 500, 1000? ज्यादा है, ज्यादा 1500 2000 से प्लस होगी। सो ये एआईए इंजीनियरिंग है क्या, और ये क्यों मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ? ये भी एक लेगेसी कंपनी है जो कि 1970s में इकट्ठा हुई थी, बट इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 1991 में किया गया था। द पर्सन जिसका फोटो है यहाँ पे, जिसका नाम है भद्रेश शाह, ये हिंदुस्तान का 92nd रैंक्ड रिचेस्ट मैन इन इंडिया है और ऑल ओवर वर्ल्ड में 1730 की रैंक पे आता है। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग करता है। कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग मतलब अहमदाबाद में कम से कम 1500 से 2000 लोग होंगे। अगर मैं नेशनल लेवल पे बात करूं तो कम से कम 2-3 लाख फाउंड्रीज होंगी। 2-3 लाख मेटल को मेल्ट करते हैं, किसी एक शेप को देते हैं और किसी एक शेप को देके वो लोग सेल करते हैं। एवरीबडी आउट देयर पर केजी बेसिस पे काम करता है, कुछ मशीनिंग करने के बाद पर पीस के लेवल पे काम करते हैं। दिस इज हाउ द एंटायर इंडस्ट्री मूव्स। हियर इज वन गाय जिसने बोला ना मैं पर केजी पे बेचूंगा, ना ही मैं पर पीस पे बेचूंगा। मेरे कस्टमर को क्या चाहिए? मेरे कस्टमर जो है वो ये लगाने के बाद में उसको कितने घंटे तक चलना चाहिए ये चाहिए। सो मैं ये पर आवर बेसिस पे बेचूंगा। एआईए इंजीनियरिंग निकल क्रोम के और हाई क्रोम के एलॉयज बनाता है, हाई क्रोम की कास्टिंग बनाता है, जो कि पूरी दुनिया पर केजी की बेसिस पे बेचती है, पर यूनिट की बेसिस पे बेचती है, और ये अकेले हैं जो कि पर आवर बेसिस पे बेचते हैं। So if you will buy their products, they will give you a guarantee of 10,000 hours of life. और अगर 10,000 घंटों से कम चला तो वो रिप्लेस कर देंगे। Okay, so that is their core competency. That is what they are so specialized about. और इतना ही चेंज करने की वजह से, इतना ही थोड़ा बहुत चेंज करने की वजह से, they became the second largest manufacturer of high chrome materials in the world. 1991 में इनकॉर्पोरेट की हुई कंपनी की आज की मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू 16,000 करोड़ है। कितना है? 16,000 करोड़ है। वो भी एक ऐसी इंडस्ट्री में जिसमें से यूजुअली लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप इतने मल्टीपल पे ग्रो कर सकते हो। 16,000 करोड़ मतलब क्या बात होती है? इट्स इनसेन, इट्स जस्ट इनसेन। ये आपके सामने एक एग्जांपल है। दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग चीज एआई इंजीनियरिंग ने ये की थी कि 2001 के आसपास में, 2011, 12, 13 के आसपास में बहुत सारी वेल एस्टैब्लिश्ड रेप्यूटेड फैमिलीज जिनकी खुद की फाउंड्रीज थी वो बंद हो रही थी। एआई इंजीनियरिंग ने उस टाइम पे उन फाउंड्रीज को टेक ओवर किया। यूजुअली टेक ओवर किया का मतलब क्या होता है? टेक ओवर किया, उसका लैंड ले लिया, उसके इक्विपमेंट ले लिए, उसके एम्प्लॉयज ले लिए, फाउंडर को जाने दिया। इनकी कोर कॉम्पिटेंसी ये रही है कि जिन कंपनियों को इन्होंने टेक ओवर किया उनके प्रमोटर्स को एम्प्लॉय किया, उनके प्रमोटर्स के नेक्स्ट जनरेशन को उन्होंने प्लांट हेड्स बनाया,
आज की तारीख में साणंद का इनका प्लांट है, उसका जो हेड है वो वैसे ही एक फैमिली जिसकी जिसकी कंपनी को उन्होंने टेक ओवर किया था उसका सेकेंड जनरेशन, और ये बंदा साणंद के उसके पूरे यूनिट को कम से कम 10,000 लोगों को सिंगल हैंडली हैंडल कर रहा है, और उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे पोजीशन भी दी हुई है। सो दिस इज अ यूनिक केस जहां पे एक ट्रेडिशनल एसएमई, एक ट्रेडिशनल बिजनेस जो कि यूजुअली लोग मानते हैं कि इसके ग्रोथ होने के, स्केल होने के कोई चांस नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं है, उसने बिजनेस मॉडल को चेंज करके, अपने कस्टमर को समझ के, अपने कस्टमर की नीड्स को बेटर आइडेंटिफाई करके खुद को इतना बड़ा कर दिया है। दिस इज व्हाट आई कॉल एज इनोवेशन। मोर इम्पोर्टेंटली बिजनेस इनोवेशन, बिजनेस मॉडल इनोवेशन, ये जानना, ये समझना जरूरी है। ऐसा कुछ हमारे बिजनेस में हो सकता है? ऐसा कुछ हम लोग अपने कस्टमर्स के बारे में कुछ ऐसी कोर कॉम्पिटेंसी जान सकते हो है क्या? आप लोग को शायद से याद होगा कि पुराने टाइम पे, आज के टाइम में भी कई सारे ऑयल के टिन्स वो स्क्वायर डब्बों में आते हैं, स्क्वायर डब्बों में आते हैं, और उसमें एक वो क्या कहते हैं, वो लोखंड का हम लोग मारते थे और फिर वो अपने वेसल के अंदर हम लोग तेल निकाल देते थे। उसमें अराउंड स्पिलेज की वजह से, नीचे नीचे गिर जाने की वजह से 10 to 15% के आसपास वेस्टेज हो जाता है। अहमदाबाद की कंपनी एनके प्रोटीन्स करके है, जो कि बहुत सारी अच्छी और बुरी रीजंस की वजह से फेमस हुई थी। दे आर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु सेड कि हम लोग एक प्लास्टिक का कंटेनर डिजाइन करेंगे और जो कि पोर फ्रेंडली होगा, जिसको अगर आप लोग नीचे निकालते हो तो बहुत इजीली अंदर एक स्पेसिफिक जगह पे निकल जाएगा। और उस पैकेजिंग की वजह से एनके प्रोटीन्स ने पूरे ऑयल इंडस्ट्री को रूल किया था। और क्योंकि हम लोग ऑयल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अगर आप गुजरात साइड से हो तो आप सब में से कई लोगों को पता होगा कि पुराने टाइम में, आई एम टॉकिंग 60s, आई एम टॉकिंग 70s, आई एम टॉकिंग अर्ली 80s, एक कम्युनिटी हुआ करती थी जो कि ग्राउंडनट ऑयल बनाती थी। अहमदाबाद में, राजकोट में, सौराष्ट्र में उन लोग को तेलिया राजा बोला जाता था। हमारे पुराने नेबर्स भी उनमें से एक रहे हुए हैं, और ये दे यूज्ड टू रूल द मार्केट प्लेस। मतलब आप समझ लीजिए, तेल तो नेशनल लेवल पे, क्योंकि दे वर द ओनली प्रोड्यूसर्स, तो वो दे यूज्ड टू डिसाइड कि रेट्स क्या होंगे। मन फाए वैसे रेट्स रखते थे, जैसी इच्छा हो वैसे हम लोग पूरा का पूरा बिजनेस करते थे। और गवर्नमेंट ने इंटरवीन होके पाम ऑयल को इंडोनेशिया से इंपोर्ट करना शुरू किया, और जो कि इस ग्राउंडनट ऑयल के हाफ प्राइस पे हुआ करता था। सनफ्लावर ऑयल होना शुरू हुआ, राइस ब्रांड ऑयल होना शुरू हुआ, और ये ग्राउंडनट ऑयल वाले इंडस्ट्री की हालत बहुत खराब हो गई। अराउंड 80% ऑफ द यूनिट्स जो कि ग्राउंडनट ऑयल बनाने वाले सौराष्ट्र राजकोट साइड पे है, ये बंद हो चुके हैं। उनमें से एक ऑयल बनाने वाली फैमिली और एक ऑयल बनाने वाली कंपनी की जब नेक्स्ट जनरेशन आया, उसने देखा कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं एंड इट इज अ डाइंग इंडस्ट्री। तब उसने ये सोचने का ट्राई किया कि बॉस, मेरे जो इक्विपमेंट है, मेरी जो जानकारी है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो किसको और चाहिए। और उसने आइडेंटिफाई किया कि अगर ग्राउंडनट ऑयल के अंदर हम लोग कुछ अंदर इनोक्यूलेशंस करते हैं तो बाल के लिए और स्पेसिफिकली बियर्ड के लिए, फेशियल हेयर के लिए बहुत बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने छोटे पैकेजिंग बनाना शुरू किया, उन्होंने उसका R&D किया, टेस्टिंग किया, ब्रांडिंग किया, जबरदस्त ब्रांडिंग किया, और एक बहुत ही सस्ते रेट पे ऊपर एक ब्रांड लॉन्च की। आई एम टॉकिंग अर्ली 2000s, जब हिंदुस्तान के अंदर बियर्ड रखने का, दाढ़ी रखने का क्रेज नहीं हुआ करता था, अर्ली 2010s। बट देन ये एक रेज उन्होंने लिटरली क्रिएट किया। आज की तारीख में मैरिको की कंपनी को उन्होंने कंपनी पूरी की पूरी कंपनी बेच दी है, और बेची भी कितने रेट पे बेची हुई, अगर उन्होंने टोटल पैसे 100 रुपए डाले होंगे तो 10 साल के अंदर ये बियर्डो सिर्फ ब्रांड बेची है। ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट तो उनका अभी भी वहां पे है। बियर्डो ब्रांड को बेच के उन्होंने कुछ एक हजार, मतलब मुझे एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पड़ा, कुछ एक हजार या कुछ एक 100 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हुए, और ये फोर्ब्स के 40 अंडर 40 के लिस्ट में आए हुए हैं। आज की तारीख में मैरिको के अंदर ज्वाइन होने के बाद में बियर्डो की मार्केट वैल्यू, सेल्स वॉल्यूम 300 गुना बढ़ गया है। 300 times it is up. 300 times it's up. This is what I call as innovation. This is a classic case of finding a new customer segment. आप जो कर रहे हो, आपको जो आता है, जो आपके कस्टमर्स आज की तारीख में कॉम्पिटिटिव मार्केट में है, जहाँ पे बहुत डिफिकल्टीज आपको आ रही है,
किस और मार्केट में कौन से और लोग हैं जिसको ये डेस्परेटली चाहिए, ये ढूंढने का काम आपका है, ये समझने का काम आपका है। अगर आप ये कर पाए तो आपको भी कोई नहीं रोक पाएगा ऐसे ही केसेस बनाने के, ऐसे ही आगे बढ़ने के। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। गाइस, आर वी ऑल गुड पीपल? हेलो, Yes. आर वी हैविंग फन? यस 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 ઇન્ટરેસ્ટિંગ कोई और સ્ટોરીઝ बोलेगा तो मजा आएगा, यहाँ 2-3 लोग ही बोल रहे हैं। ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરીઝ જાણવા મળે છે એકચ્યુઅલી. Yes, sir. Yes. मेहुल भाई, आर वी हैविंग फन? प्रतीक भाई? Yes, yes. ओके। सुधीर? Yes, sir. यस अनय भाई. Okay, साची? Yes, sir. साची, चैतन्य? Yes, sir. आर वी हैविंग फन? Yes, yes. Yes. Totally. किसी को नींद आ रही है अभी? नहीं नहीं. पक्का? हनी? Yes, sir. Okay. Yes, मजा आ रहा है. ओके ओके ओके। सो ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग कंपनी है अगरबत्ती। ना अगरबत्ती, बस अगरबत्ती एज एन इंडस्ट्री, आप अगर रोड पे जाओगे तो आपको रोड पे बनाने वाले, रोड पे सुखाने वाले लोग मिल जाएंगे। अगरबत्ती वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी नोन टू अस, हजारों साल से हिंदुस्तान में बन रही है, रादर दुनिया भर में बन रही है। क्या नया उखाड़ लोगे आप इस इंडस्ट्री के अंदर, क्या नया कर पाओगे आप इंडस्ट्री के अंदर? बट देन कोई था बाय द नेम ऑफ एंग रंगा राव, जिसने इस पूरी इंडस्ट्री, जो कि उसका वेल एस्टैब्लिश 1948 में एस्टैब्लिश हुआ हो, एक ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस हुआ करता था, जहां पे उसकी ग्रैंड मदर लिटरली हाथ से अगरबत्तियां बनाया करती थी। उससे आज की तारीख में 35,000 विमेन को एम्प्लॉय कर रहा है, 12 बिलियन अगरबत्ती बना रहा है रेगुलर बेसिस पे, खुद का आईपी प्रोटेक्शन किया हुआ है, और यू नो व्हाट, उसने वीसी फंड रेज किया हुआ है। यूजुअली ऐसा माना जाता है कि वीसी फंड जो है या फिर प्राइवेट इक्विटी फंड है वो की हाई टेक कंपनीज के लिए बनाया गया है। इट इज मेंट फॉर ऑल दोस पीपल जो कि एकदम टेकी हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो, इंडस्ट्री को अगरबत्ती के पीछे कोई 1500 करोड़ रुपए खड़ा कर सकता है। कैन यू इमेजिन? डोंट वी थिंक दैट हम सबके धंधे साला अगरबत्ती से तो कुछ बेटर है, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कुछ तो बेटर है अगरबत्ती से, बट देन दैट इज दैट। वो समझना हमको जरूरी है कि हम किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग किस तरह मार्केट को एग्रीगेट कर रहे हैं, हम किस तरह अपने इंटरनेशनल क्लाइंट बेस को, अपने इंटरनेशनल इन्वेस्टर को बता रहे हैं कि बॉस, हिंदुस्तान का इतना बड़ा पॉपुलेशन है, ये पूरा का पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अगर गेहूं के अंदर वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, अगर नमक के अंदर आप टाटा नमक 4 गुना ज्यादा पैसा देने को तो हम लोग तैयार होते हैं ये कंट्री, तो क्यों अगरबत्ती के लिए? और वो एक्सप्लेनेशन अगर आप डेप्थ के साथ इकट्ठा कर पाते हो, और अगर आप वीसी फंडिंग रेज कर पाते हो, प्राइवेट इक्विटी कर पाते हो, एक नेशनल लेवल का आप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एस्टैब्लिश कर पाते हो, इंटरनेशनल लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एस्टैब्लिश कर पाते हो, आप मल्टीपल कंट्रीज में अपना एक्सपोर्ट कर पाते हो, तो क्यों नहीं आप पीवीसी फंडिंग इकट्ठा करके इतनी बड़ी बन सकते हो? अगर एक अगरबत्ती वाला ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम लोग के टेक्नोलॉजी से बेटर नहीं है? क्यों हम लोग का बिजनेस मॉडल बहुत जबरदस्त नहीं है? क्यों हम लोग पीछे पड़ रहे हैं? ये समझना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है, ये इम्बाइब करना बहुत जरूरी है, और ये इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है हम लोग की कंपनीज के अंदर, हम लोग के बिजनेस के अंदर। इसके लिए इनोवेशन की जरूरी है। इनोवेशन का मतलब कभी भी टेक्नोलॉजी इन्वेंशन नहीं होता है, टेक्नोलॉजी डिस्कवरी नहीं होता है, ये एक सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी होता है। और क्रिएटिविटी को, अगर क्रिएटिविटी को यूज करके वैल्यू क्रिएट कर रहे हो तो वो इनोवेशन है। फिर वो अगरबत्ती के रिलेटेड भी क्यों ना हो, वो इनोवेशन है। फिर वो कुछ भी क्यों ना हो, कितना भी क्या कहते हैं बेसिक क्यों ना, वो इनोवेशन है। क्रिएटिविटी प्लस वैल्यू इज इक्वल टू इनोवेशन। हम लोग को समझना जरूरी है
कि हम लोग के अंदर कौन सी क्रिएटिविटी बसी हो, हम लोग क्या क्रिएटिविटी इन्वॉल्व कर सकते हो, हम लोग कौन सी टेक्नोलॉजी को जानते हैं, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और उससे क्या किसी और के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये दो चीज़ें इकट्ठा हो सकती है तो हमको कोई नहीं रोक सकता है। जब हम लोग बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, तब हम लोग डिस्कस कर रहे थे बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारी हकीकतें कि जिसकी वजह से ऐसे नहीं मर रही है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऐसी भी कंपनीज हैं जो कि इतना आगे बढ़ रही है। कितनी सारी फाउंड्रीज आज की तारीख में बंद हो रही है, कितने सारे अगरबत्ती बनाने वाले लोग बंद हो रहे हैं, कितने सारे आईटी कंपनीज बंद हो रही है, कितने सारे ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट्स बंद हो रहे हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे कुछ लोग भी हैं जो कि सर्वाइव नहीं हो रहे हैं, ग्रो नहीं हो रहे हैं, स्केल हो रहे हैं। स्केल और ग्रोथ के बीच का डिफरेंस मेरे मुताबिक, अगर आप हर 6 साल के अंदर आपकी नेट वैल्यू डबल नहीं कर रहे हो तो आप एक्चुअली पैसे घुमा रहे हो, क्योंकि इन्फ्लेशन के रेट के मुताबिक आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और अगर आप स्केल कर रहे हो तो अगर आप हर साल 6 गुना नहीं बढ़ रहे हो तो आप स्केल नहीं कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो। 6 साल में दो गुना, इफ यू आर नॉट डूइंग इट, क्योंकि अगर आप एफडी में पैसा डालोगे तो 6 साल में डबल हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो हम अपने कंपनी में बैठ के क्या कर रहे हैं, और इसका जवाब मैं अगर कोई आप में से कोई मेरी फैक्ट्री में आके मुझे पूछेगा तो मेरे पास भी नहीं है इसका जवाब। बट हम सबको इकट्ठा होके हम सबको खुद के लिए ढूंढना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। क्यों हमारे बारे में कोई बंदा किसी प्रोग्राम के अंदर बोल नहीं रहा, क्यों हम विटलानी नहीं है, क्यों हम एन रंगाराव नहीं है, क्यों हम प्रियांक शाह नहीं है, क्यों हम भद्र शाह नहीं है, क्या है जो लोग जो नहीं कर पाते, वो इनोवेशन का। और ये जानना, समझना और करना, सर्वाइव होने के लिए, वो करने के लिए और स्केल करने के लिए हम सब कुछ जरूरी। कोई भी प्रूव हो और कोई भी थियरी हो, उसको प्रूव करने के लिए एक रास्ता ये होता है कि आप उसके एक्सेप्शन को डिस्कस करें। सो मैं 2 एक्सेप्शन के बारे में बात करूंगा, उसमें से एक ये है। 1990s में जब फ्लॉपी डिस्क का जमाना हुआ करता था, तब फिलिप्स ने, वेल एस्टैब्लिश कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, फिलिप्स ने एक ऐसी अपनी डिस्क बनाई जो अपने रेडियो में लगाते थे पूरे कैसेट पे, वैसे ही कैसेट डिस्क बनाई थी, मैग्नेटिक टेप बनाई थी, जिसके अंदर डेटा सीडी से बेटर स्टोर हो सकता था, फ्लॉपी डिस्क से बेटर स्टोर हो सकता था, सीडी से थोड़ा सा कम स्टोर हो सकता था। और सीडी की टेक्नोलॉजी साथ साथ में चल रही थी। सीडी टेक्नोलॉजी आके निकल गई, 4.7 MB स्टोर करना शुरू कर दिया, और ये कुछ 3-3.5 MB के आसपास पीछे रह गए। अब हम लोग गुजरात में हैं, और गुजरात में हम लोग, इन लोग ने किया वो शायद से न कर पाए या कर पाए, वो दूसरी बात है, बट इसके इनोवेटर्स बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए। और फ्रस्ट्रेट होने के बाद जो फ्रस्ट्रेट हुए लोग दुनिया भर में करते हैं, गुजरात के सिवा वो बाहर में चले गए, और बाहर में गुस्सा आ रहा था, तो अपनी डिस्क की जो मैग्नेटिक फिलामेंट है उसके ट्यूब के ऊपर उसने बियर रख दी, 2 ग्लास, एक खाली ग्लास रखा, उसके ऊपर अपना फिलामेंट रखा, उसके ऊपर दूसरा ग्लास पोर कर दिया बियर का, और वो एक दूसरे को हंस रहे थे। टू देयर कंप्लीट अमेजमेंट दे फाउंड आउट कि जो फिलामेंट है उसके नीचे की बाजू जो बियर निकली वो इनलेट से काफी ज्यादा क्लियर थी देखने में, विजुअली, और वो टेस्ट भी बेटर कर रही थी, वो कम कड़वी लग रही थी। एंड दे वर शॉक्ड, एंड यू नो व्हाट हैपेंड, दे फाउंड आउट कि जो चीज उन्होंने डेटा स्टोर करने के लिए बनाया था वो एक बहुत ही जबरदस्त फिल्टरिंग फिलामेंट है, और क्योंकि वो इतनी जबरदस्त फिल्टरिंग फिलामेंट है जिसकी वजह से वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बियर को फिल्टर कर रही है। और आज की तारीख में भी 30 साल बाद द बेस्ट फिल्टर्स इन द एंटायर ब्रूअरी इंडस्ट्री happens to be these magnetic tapes. Again, a very interesting example of a totally failed product in a marketplace, in an environment, when put to some other use, it just made their day. एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो मेरे पास में, मुझे लगा था शायद से टाइम नहीं होगा, बट है तो डिस्कस करते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स पता है किसी को? व्हाट डू वी मीन बाय वैक्यूम ट्यूब्स? बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यहाँ पे, एनीबडी? वैक्यूम ट्यूब्स क्या हुआ करती है? हेलो, जाग रहे हो, सो गए?
भाई मैं अकेला बोल रहा हूँ क्या? शायद वो वैक्यूम टीवी का जो स्क्रीन आ गया था वो था क्या? पुराने जमाने में उसको, वो भी एक वैक्यूम ट्यूब का टाइप है। तो यस, पुराने जमाने में टीवी थी आपकी जो ट्यूबलाइट्स है, हाँ या हाँ, आपकी जो ट्यूबलाइट्स है वो भी वैक्यूम की ट्यूब्स है एक्चुअली। नाउ जब कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए थे तो वो लोग वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर स्विचेस बनाते थे, जिसको वैक्यूम बाल्स भी बोलते हैं। एक वैक्यूम का फिलामेंट हुआ करता था जिसके अंदर वो एक बहुत ही हाई एनर्जी से, मतलब बहुत ही हाई पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसमिट होती थी और स्विचेस की तरह काम किया जाता था। बहुत सारी कंपनीज बनाने वाली थी, बहुत जबरदस्त काम करने वाले लोग थे, कंपटीशन भी बहुत जबरदस्त था। बट क्योंकि कंप्यूटर्स के अंदर उसकी जो स्पेसिफिक वैक्यूम ट्यूब्स बनाने वाले थे, स्पेसिफिक बनाने वाले लोग थे, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ गई, वैक्यूम ट्यूब्स की ज़रूरत कम पड़ने लगी इन कंप्यूटर्स, तो लोग जो बनाने वाले थे दो नए प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया और इवेंचुअली एक ही कंपनी बाकी रही जो कि कंप्यूटर्स के लिए वो वैक्यूम स्विचेस या वैक्यूम ट्यूब्स बना रही है। और सिचुएशन आज की तारीख में ये है कि उसके पास आउट एंड आउट मोनोपोली है। और वेरी ट्रू, दुनिया में कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स इतने जबरदस्त हो गए कि हम लोग को वैक्यूम ट्यूब्स की जरूरत नहीं है। बट आज की तारीख में भी कुछ एक जगह पे जो बेसिक मेन फ्रेम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ एक एयरपोर्ट्स दुनिया के, कुछ एक स्टॉक एक्सचेंजेस जो कि पुराने हैं, उसके अंदर कुछ एक सिस्टम्स ऐसी है जहाँ पे वो वैक्यूम ट्यूब्स और वैक्यूम स्विचेस की सख्त जरूरत है। और आज वो अकेला मैन्युफैक्चरर बचा है। और क्योंकि आज की तारीख में वो अकेला मैन्युफैक्चरर बचा है, वो चाहे वो पैसे मांग सकता है, वो चाहे वैसे डिलीवरी रख सकता है और उसको कोई कुछ नहीं बोल पाता है। सो दिस इज जो बोलते हैं ना, द एक्सेप्शन प्रूव्स द लॉ। ये एक एक्सेप्शन है कि क्या आप इतने टाइम तक सर्वाइव करते रहना चाहते हो, क्या आप उतने टाइम तक अपने धंधे के पीछे पड़े रहना चाहते हो, क्या आप इतने टाइम तक लॉस सस्टेन करना चाहते हो, तब जब तक कि पूरा मार्केट खाली हो जाए और कस्टमर की नीड सर्वाइव करने वाला, सप्लाई करने वाला कोई ना बचे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट रिलायंस डज। एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट को मैं भी अहमदाबाद में मिला था, स्पोर्ट्स क्लब जाता हूँ स्विमिंग के लिए तो मुझे मिलते रहते हैं। वो हाथ से वीविंग करते हैं एंड उनका पर स्क्वायर फीट, मतलब 10 बाय 10 स्क्वायर फीट का कपड़ा या 20 बाय 20 स्क्वायर फीट का कपड़ा लाखों में जाता है। सो बहुत ही वेल एस्टैब्लिश, बहुत ही रेप्यूटेड, बहुत ही जबरदस्त, एकदम ओल्ड, इन 70s ये चाचा जी या फिर दादाजी है जो कि काम कर रहे हैं एक बार। एंड और वो अगर आप उनको मिलोगे तो आपको ये लगेगा भी नहीं कि बॉस ये इतना वेल एस्टैब्लिश आर्टिस्ट है। वो टिपिकल सफेद पीली वाली स्लीपर जो आज पता नहीं कहाँ मिलती है, वो खाकी के कपड़े, लहंगा, एंड ये बड़ी सफेद दाढ़ी, पूरे सफेद बाल, कटाए नहीं भगवान जाने कितने टाइम से, ऊपर टकला। एंड हियर इज दिस गाय जो कि वो स्विमिंग करने के लिए आता है। और एक बार बातें चली, मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो मैंने उनको पूछा कि आपको ये, आप इतने ग्रेट आर्टिस्ट बने कैसे? यू नो व्हाट ही टोल्ड मी, बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि मैं पूरी जिंदगी तक इतना ग्रेट नहीं था, जब 65 साल का बना ना, जब 65 साल का हुआ तब तक मैं ग्रेट नहीं था, क्योंकि मुझसे ऊपर, मुझसे बेहतर काम करने वाले लोग बहुत सारे थे। आज सिचुएशन ये है कि मुझसे आगे, मुझसे बेहतर काम करने वाले सब लोग मर गए एंड आई एम द लास्ट सर्वाइविंग गाय जिसको ये आर्ट आता है। और क्योंकि मैं लास्ट सर्वाइविंग पर्सन हूँ जिसको ये आर्ट आता है, तो मैं जो काम करके देता हूँ उसके लिए कोई भी आदमी कुछ भी पैसा देने को तैयार है, क्योंकि वो इतना रेयर है। दिस इज अगेन the exception proving the law। अगर आपको इनोवेट नहीं करना है और आपकी ये स्ट्रेंथ है कि आप उतने टाइम तक पैसा घुमाते हुए या फिर उतने टाइम तक सर्वाइव कर सकते हो जब तक मार्केट में नीड सर्वाइव होती रहे बट सप्लाई कम हो जाए, तो आप भी महान हो, मैं उसको भी इनोवेशन कहूंगा। और वो आप, और मैं बोलता तो आप इतना चार्ज करते हो तो आप व्हाई डोंट यू ड्रेस अप वेल? तो उन्होंने बोला आप आदत पड़ गई है। उन्होंने बोला मैंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत बुरी तरीके से निकाली है, बहुत कम पैसा लेके निकाली हूँ। जो मैं आज कमा रहा हूँ ना, मैं आज की मेहनत का नहीं कमा रहा हूँ, मैं इतने सालों तक नहीं कमाया ना, उसका पैसा आज कमा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक, जो कि मैं अपने अभी तक जो बोला उसका एग्जैक्टली अपोजिट बोल रहा हूँ, पर ये भी एक फैक्ट है।
और ये अगर ये किसी कॉलेज में MBA कॉलेज में लेक्चर लेता तो मैं ये एग्जांपल कभी नहीं देता, बट क्योंकि मैं अपने जैसे एंटरप्रेन्योर्स के बीच में बात कर रहा हूँ और मैं अपने पीयर्स के साथ में इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक एग्जाम्पल है जो भी हमको समझना बहुत जरूरी है। ओके, सो मैंने बहुत बोला, अराउंड 1.25 घंटा प्लस बोला है। मुझे आप सबके क्वेश्चंस, डिस्कशन पॉइंट्स, कॉन्वर्सेशंस जानने हैं, समझने हैं, आंसर करने हैं। हमारे साथ में विक्रांत भी यहाँ पे है जो वी वुड लाइक टू एड्रेस योर क्वेरीज, क्वेश्चंस, नोट्स, ऑब्जर्वेशंस as and when what they are. Hello? कोई है? अनय भाई, सब सो गए? अनय भाई गुड मॉर्निंग। यस, एक आपने जो वैक्यूम कूलर एग्जांपल दिया ना, जो उसी के लगता मतलब मिलता जुलता और एक है फॉक्स प्रो करके, एक डेटाबेस कंपनी थी। अभी तो फिलहाल सब ओरेकल, एक्सेल और वो सब आ गया, लेकिन एक जमाने में डॉस वर्जन चल रहे थे मशीन पे, तब फॉक्स प्रो करके थी। और इंडियन टिकटिंग, इंडियन का जो रेलवे टिकट बुकिंग है वो पूरा फॉक्स प्रो डिपेंडेंसी था। तो मे बी बिकॉज ऑफ इतना बड़ा वास्ट और नेटवर्क हो गया था और इतना डिपेंडेंसी हो गया था, दे वर नॉट एबल टू चेंज टू सम अपग्रेड दैट टू सम अदर टेक्नोलॉजीज, जैसे कि ओरेकल है या फिर MSQL है, सर्वर है उसे। तो दे वर forced to use that Fox for a couple of decades, not a year. Fox Pro मार्केट में से सब जगह से निकल गया, खाली इंडियन रेलवे टिकट में चल रहा था एट दैट टाइम। Nobody was, मतलब विंडोज बेस आ गया तो डॉस कौन यूज करेगा, राइट? सही बात। विंडोज तो इंडियन मतलब ट्रेन की टिकट तब भी फॉक्स प्रो पे ही काम कर रही है ऑन दैट टेक्नोलॉजी। Great example. Great example. Just to share that with the Tube One. Thank you. We appreciate it. Thank you. Thanks. Any observations? मजा आ गया भाई सारा सेशन में। तो फीडबैक પછી ઘણા ટાઈમ પછી એટેન્ડ કર્યું। ओके, दिनेश बयाला जी, भावेश, couple of you guys have joined little later. Mehul bhai, can you please introduce yourself very quickly? What is your business and why are you here? मतलब ये प्रोग्राम क्यों ज्वाइन कर रहे हो आप? Hello? अनय भाई, Yes. after a long time I am attending session at evening time, but it was very insightful. And see, there are so many companies. If we talk about Maxen Pharmaceutical, right, it's into Surendranagar district. So they were not from the industry, right? They have never seen any kind of machines. The guy, the owner of Maxen Engineering himself, has studied not more than 5 class, right? And he is the one of the best engineering companies for chocolate manufacturing machines. Okay. Right. So if we start studying, right, सबसे ज्यादा नॉलेज कहाँ से आती है? जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम देखेंगे, तो हमारे वहाँ हर जगह पे ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो आपको इंस्पायर करेंगे। Very true. Maybe quickly introduce yourself. Quickly. 30 seconds introduction, please. Myself Mehul. I have worked with telecom for 20 years, and after 2016 I started my own company, and currently I'm owning 2 companies. One of the startup is bootstrapped. We have raised around 7.5 crore, and one more startup
has already we got some around 50 lakh rupees into that, and way to go. So we have just started, and our vision is to reach at the level of around 500 crore in next 5 years. Best of luck, Mehul. Honey, introduction, please. Honey, are you with us? Okay, Bhavesh. નમસ્તે એવરીવન. સો હું ભાવેશ દવે છું અને એક પ્લેટફોર્મ ચલાવું છું જેનું નામ છે બડિંગ. બડિંગ ઇઝ અ વિડીયો હાયરિંગ પ્લેટફોર્મ બેઝિકલી. સો વિથ two products, one is a video resume, second is a job audition. We try to automate hiring. સો યસ 3 વર્ષ થયા મારા સ્ટાર્ટઅપને અને અમે લોકો જીટીયુમાં ઇન્ક્યુબેટેડ છીએ. Great. Sudhir, quick introduction, please. Yes, sir. Sorry, कॉल आ गया था इसके लिए. Are you with us? Yes, sir. कोई बात नहीं. बताओ कुछ अपने बारे में बताओ, क्या कर रहे हो? Basically, sir. 30 seconds है, लंबा नहीं. Okay, so general stuff. So basically हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने अभी प्लास्टिक वेस्ट से स्टार्ट किया है. बिकॉज सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हम लोगों ने फाइंड आउट किया वो प्लास्टिक वेस्ट था, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं प्लास्टिक वेस्ट को इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में. यानी कि कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट जो डबल या उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है या ज़्यादा लाइफ साइकिल देता है, एंड उसकी ओवरऑल जो कॉस्ट है या नेटवर्थ है या वैल्यू बोलो आप, वो इकोनॉमिकली चीप होता है. और बेसिकली उसके अंदर लाइक हमारे पास 2 अभी फाइल्ड पेटेंट है. इसके अंदर एक नया इंटरनेशनल है, 1 नेशनल है, और 2 पेटेंट इन फाइलिंग पीसीटी इन लाइक प्रोग्रेस है अभी. ओके. यूजुअली क्या होता है कि सेशंस के बाद होमवर्क हुआ करता था, और मैं ये चाहता हूं कि ये एक लेगेसी हम सब, दैट इज मी इंक्लूडेड, हम सब कंटिन्यू करें. और ये होमवर्क को चेक करने के लिए हमारे पास में दृष्टि मैडम और फैजा मैडम है, जिनका काम होगा कि हम लोग का होमवर्क चेक करें और फिर मार्क्स भी दें. राइट दृष्टि मैडम, फैजा मैडम? हेलो, आर यू विद अस? Yes, sir. राइट. सो इंटेंशन ये है कि हम खुद को चेक करें, बट एक रेपोजिटरी हो सके ताकि हम लोग के पास कुछ ना कुछ चीजें हो. देखिए, ये प्रोग्राम के पीछे हम लोग का इंटेंशन ये है कि आप प्रोग्राम को सर्वाइव करें और साथ में इकट्ठा होकर काम करें, रादर देन कोई और हो. सो मैं ये चाहता हूँ, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा खुद का भी ऐसा सबमिशन होगा इसके साथ, आप सबके साथ में, कि मैं ये होमवर्क करूँ. और होमवर्क इस तरह करना चाहता हूँ कि मैं आज से 5 साल बाद in a very objective terms, मतलब in numbers, in number of customers, in sales in numbers, number of employees, number of trips, number of net worth, number of profitability per year, उस specific terms के अंदर explicitly मेरे खुद की success story लिखूं. So timeline is 5 years. 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद 31 अक्टूबर 2025 को मैं कहां पे रहूंगा, मुझे एक्सप्लिसिटली यहां पे लिखना है. ओके, सक्सेस स्टोरी वेरी शॉर्ट. उस सक्सेस स्टोरी को पहुंचने के लिए मैं क्या क्या करूंगा, दैट टू कम ओवर एंड प्रपोज सॉल्यूशन. व्हाट आर द थिंग्स दैट आई थिंक आई नीड टू डू, जो कि मुझे करने की जरूरत है यहाँ पे, ताकि मैं अपने सक्सेस स्टोरी तक पहुंच सकूं. यहाँ पे पहुंचने के लिए मुझे कौन कौन से प्लेयर्स की जरूरत है, मुझे कौन कौन से लोग चाहिए, एक्सटर्नल एजेंसीज चाहिए, एक्सटर्नल गवर्नमेंट ऑफिस चाहिए, गवर्नमेंट हेल्प चाहिए, यूनिवर्सिटीज की हेल्प चाहिए, मार्केट पेनिट्रेशन की जरूरत है, इंटरनेशनल मार्केट में करने की जरूरत है, क्या क्या मुझे चाहिए, कौन कौन से प्लेयर्स चाहिए, ताकि मैं अपने सक्सेस स्टोरी तक पहुंच सकता हूँ. मैं उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस. मैं कौन कौन से चैलेंजेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि मैं फेस करूंगा यहाँ तक पहुंचने के लिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम वाइज एक्शन, कौन कौन सी चीज मैं करूंगा, कौन कौन सी चीज किसके पास से करवाऊंगा, कौन कौन सी चीज मैं कौन से प्लेयर्स के पास में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ
ये हो जाए इस टाइम फ्रेम तक, ताकि मैं अपने सक्सेस स्टोरी तक पहुंच सकूं. आर वी क्लियर टिल नाउ पीपल? हेलो? Yes, sir. Yes. Okay, so are we game for doing this? Yes. Yes, sir. Hello? Sure, we will do it. Okay. With us, we also have Vikrant. Vikrant is around, right? Yes, Rashmi Ane sir, madam? I'm around. Faizan madam, Vikrant. Yes. So Vikrant is the buddy of mine जिसने ये पूरा प्रोग्राम, ये पूरा सेशन हम दोनों ने साथ में, और ये पूरा प्रोग्राम हम सब ने साथ में एनविजन किया हुआ है. And Vikrant, would you like to say a few words? I think, Ane sir, thank you so much. This was a cracking start. So much, so many cases, action-packed, interactive. I think it was an eye-opening session for all of us, all the SME founders. And just to tell all the audience is that, such power pack sessions are going to be there every Saturday, and the whole intention is that they are going to force you to think. They are going to force you to actually wake up in the morning and get you to innovate, get you to think what can be the next orbit that you want to move to. So Ane sir, thank you so much. This was fabulous. I think you really kind of killed it, and it was a cracking start. नहीं, thank you. But thank you, Vikrant. By the way, Vikrant is ex JP Morgan. Raised बहुत सारी कंपनीज के लिए उन्होंने पैसा रेज करके रखा हुआ है. उनकी खुद की कंपनी में उन्होंने पैसा रेज करके रखा हुआ है. मुझे कोई नंबर भी नहीं पता है कितने इंक्यूबेशन सेंटर पे वो इन्वॉल्व है प्रोफेशनली. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड उनके फंड रेजिंग के सेशंस के रिलेटेड. Rajesh sir, you have been with us for the entire time. Any words of wisdom for all of us? Hello? Hello, Rajesh sir. Okay, Rajesh sir, if you can join us and give your words of wisdom, that would be an honor. In the meantime, I would quickly like to have in 30 seconds from each and every one of you what I wish should be a part of the program in the times to come, and what is it that you are happy about, what I like and what I wish. Can we start from Divya? Yes. Hello? Yes. I'm here. What I wish and what I like. I wish के जो भी सब लोग इसमें जुड़े हुए सबको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट हो. स्पेशली गुजराती बंदा हूँ, अपने बारे में ज़्यादा सोचूंगा. तो whatever I have in my mind for next future, मतलब उससे कुछ ना कुछ in relation में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता रहे. And what is the second question? Sorry. What I like, क्या पसंद है और क्या होना चाहिए था. Like is और क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. This is what I am expecting कि भाई जिस तरीके से अपने जा रहे हैं, जैसे आज एक इनोवेशन के बारे में समझा, वैसे अलग अलग टॉपिक्स को इंटरकनेक्ट करके अपने कुछ ग्रोथ पाथ पे आगे बढ़ सकते हैं. रेस्ट आई विश के जो भी सब लोग जुड़े हुए हैं, एक अच्छा नेटवर्किंग भी एक डेवलप हो जाए उसी बहाने. ओके. कांतिलाल भाई. What went well? જે એક્ઝામ્પલ તમે What I wish and what I like. I like the જે તમે એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યા ને બધા ચેરી પિક કરેલા હતા. That was the best actually. Okay. અને what I wish is તો ભગવાન બધાનું ભલું કરે, શરૂઆત મારથી કરે.
I wish તમારી ઈચ્છા સારી રહે, તમારી ઈચ્છા સાચી પડે. સુધીર ભાઈ. Yes, sir. Hello. What do you wish and what do you like? Sir, I wish from here like मैं अपना बिजनेस मॉडल है उसको और फिल्टर करके एक्यूरेट सेट कर पाऊँ कि मैं अपने आप को कहाँ सी कर रहा हूँ अभी नेक्स्ट 5 ईयर में पोटेंशियली, सो आई कैन ट्रेस आउट माय ग्रोथ. and like what I like is like the culture, like basically के जो connecting networks मिलते हैं and like two end conversation, that is what I like. Okay. Shani bhai. Hello. Yes. I like the entire session because after a long time I attended this kind of session. And તમારો સેશન તો બહુ ટાઈમ પછી અટેન્ડ કર્યો મેં. It is a long time. So I personally like entire session. It was quite good session. And I wish that કે આ personally one-on-one session Tuesday હોત ટીમ જોડે. So એની મજા અને sticky notes સાથે એની મજા કંઈક અલગ જ હોય છે. I agree. We'll try doing that. We'll try doing that. Faizab. Yes, sir. What do you wish and what do you like? Quickly, everybody sleepy now. Yes. So what I liked was the way the session went. Of course, we had discussed all these things while we were planning for the session. So everything has been covered. The kind of start you wanted to the program in terms of what session, what content would go. So it was there. In terms of what I wish, what I see right now is that some of our participants were not able to join today. So I wish more and more number of participants in the next session, and of course to continue with the people who have attended this session. Okay. Some of our team members, some of our interns. Sachi, what do you wish and what do you like? Yes, sir. So I really like the session. I also got to learn something new today. I am not from a business background, either from family side or what I aim in future, but I really got to learn something new today. So thank you for that. And I wish, as Faizab said, that as some of you have joined, so thank you for joining, and I hope that more people join in the next session as well. Pratik bhai. હા ને ભાઈ, સેશન બહુ જ સારું હતું. સેશન બહુ સારું હતું. એક્સપેક્ટ કર્યું એના કરતા ઘણું સારું હતું. મને આટલું આઈડિયા નતો પણ બહુ જ જોરદાર રહ્યું. અને આઈ વિશ કે આપણા જોડે ઘણા પાર્ટિસિપન્ટ છે કે જે એકચ્યુઅલી જોઈન નતા થયા, એ બધા જોઈન થઈને મીન્સ ગ્રુપ થોડું મોટું થઈ જાય આપણું, જે એક્સપેક્ટેશન છે એ રીતનું, તો વધારે મજા આવશે હજુ. Okay. Handing over to you, Faizab madam. Best of luck and see you all and hoping that we are all. एक WhatsApp group create करेलू है, हम सबने एक WhatsApp group create किया हुआ है. I invite you to participate in the WhatsApp group. Request for no good morning forwards and no festive forwards, but very important, very interesting reads. Let it be a repository of know-how and knowledge and sharing the best examples so that we can learn from each other. Okay? हमारे ग्रुप में कई सारे लोग गुजरात से बाहर के हैं. There are people from Chhattisgarh, there are people from Hyderabad, there are people from all across India. Some amazing people, some amazing interesting people जिनके साथ मेरा interaction हुआ है. I wish हम एक दूसरे के साथ में ज़्यादा better interact करें और एक दूसरे के लिए opportunities create करने के लिए हम try करें, एक दूसरे के लिए customers ढूंढने का try करें, एक दूसरे के लिए हम लोग genuinely help कर सकें. Faizab madam, all yours. Thank you, Anay sir. I would like to thank everyone who is present here to join this session. Rajesh sir have joined our session and he was there for the entire program. So Rajesh sir, I would like to hear from you. Can you hear now? I think yes sir, you are audible. You are audible, sir. Anay bhai, I think I have been hearing from. I'm hearing for the first time. But let me tell you, my younger son, he was studying with under you probably in Ahmedabad University. He was praising you, and he told me before the start that you will enjoy it. But I really enjoyed
I think this is a very good start. And let me tell you, entire session. See, I am going to talk to participants on 15th of December for my working capital related session. So I already started thinking, taking the clues from your discussion points. Thank you. It was a very good, informative, and eye-opening session. At least I am hearing for the first time. And in fact, I am teaching finance subjects in management institutes. And I have recently retired Tani as the Vice President Finance. Okay. Okay. Very good. Convey my regards to your son, sir. Can I have his name? Sharan Shah. Acha, okay. Okay, I remember. I'll be in touch with you. I am also a streamer. In fact, so I'll be in touch with you. That personal things. Sure. Paku. Done, sir. Bye. Thank you, sir. I'd like to thank all the participants for joining in. Anay sir and Vikrant sir for designing this particular session and this entire program. We look forward to all of you, to connecting with you over the next 14 weeks. Shortly, we will so our next session will be conducted on 7th of November. The topic is understanding your core competency. We will share the details of the session with you by early next week. We will also, along with that, we will also share with you the entire schedule along with the speakers list. And we would like to hear your feedback on today's session as well. So do write to us. In case you want to get in touch with us, so we have already created the WhatsApp group. Apart from that, we have mentioned our office landline number in your emails, so you can contact us there as well. And for any queries, you can reach out to us. Thank you, all of you.